Warm welcome to Jack and Jill School. As you know, today we have gathered here for the CBSE training program of classroom management and teacher strengths. And the resource person for today is Mr. Ashamullah, principal of Oasis Public School, Hazaribagh, and also a registered CBSE resource person. We are going to start the program by presenting him a bouquet. I request Surabhi Roy, Director of Jack and Jill School, to do the same. Now we will honor him by presenting a shawl. I request Shri Nikhilesh Kumar, Secretary of Jack and Jill School, to present him the shawl. Now I am going to hand over the mic to Mr. Ehsanul Haq to take the program forward. Is it good? A warm good morning to one and all present here. Good morning, sir. I will go on repeating it until I hear a morning from each and everyone present here. A warm good morning to one and all present here. Good morning, sir. This was fine. My dear teachers, Director Jack and Jill School, Principal Jack and Jill School, Honorable Secretary Jack and Jill School, Secretary Anthem School, Principal Anthem School, and my dear educators. Standing before you, I am a teacher, Ahsanul Haq, and I love being a teacher. Besides this, I am a principal in Oasis School and have been a resource person in CBSE for over 10 years. My dear friends, today we all have gathered here for a particular purpose, for a purpose of in-house training that accounts to 25 hours in a year. And since we are in the verge of the end of the year, we have just 2 more months left. So today we are gathered here for this in-house training, and the topic being classroom management and teaching strategies. I am very sure, my dear friends, being educators, we all are quite aware with the training imparted by CBSE and the training imparted by Sahodaya school complexes. So today we are here to learn classroom management, to revise classroom management, to learn teaching strategies, and to revise teaching strategies. So I, on behalf of the Jack and Jill family and Anthem family, welcome you all in this workshop. I am very sure this would be a good experience of learning along with fun. So my dear friends, without wasting a single moment, let's start this workshop. So the first slide shows you welcome educators. Instead of teachers, I like calling teachers educators. Since today, in the 21st century, not only being a teacher is important, not only being a facilitator is important. In fact, there has to be a hardcore of educator in each one of us. So welcome educators, welcome in this in-house program. So let's see our next slide. Today's topic is classroom management and teaching strategies. My dear friends, being educators, we must realize that classroom management is a very key core concept of
teachers as well as learners. Teaching strategies, this has been taught over since time immemorial, and these two topics when clubbed together has great relevance for each and every educators. Let's begin our class with the first topic, that is classroom management. Before starting the first topic, let's go through the agenda of our discussion. As I have been told to go bilingual. My dear teachers, आप सभी ये ध्यान देंगे कि क्लासरूम एंटर करते ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। मैंने आप सभी को विश किया था गुड मॉर्निंग, बहुत कम रिस्पॉन्सेस आए, मैंने दोबारा कहा गुड मॉर्निंग, रिस्पॉन्सेस बढ़े, मैंने थर्ड टाइम कहा गुड मॉर्निंग, रिस्पॉन्सेस बढ़े। बीइंग टीचर्स, आप सभी की पहली जिम्मेदारी है टू हैव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर लर्नर्स, और जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिले आप कंटिन्यू करते रहे। आज हमारे टॉपिक का पहला एजेंडा, द फर्स्ट सब टॉपिक इज क्लासरूम मैनेजमेंट, द सेकंड वन इज 7 tips for better classroom management, the third being authority, the fourth knowledge building, the fifth time building, and the last one patience. So these are the areas where we will throw light upon. If you wish to write, I will provide the slides to Mr. Albert Ishan. Mr. Albert, make sure you give the slides to each and every of the participants so that we save some time. Okay. So for a teacher, it is mandatory to disclose what is the topic and what are the subtopics to be discussed in the class. So being a good teacher, I am here with the topics as well as subtopics that we'll discuss today. The first topic being classroom management. My dear friends, this is a key concept for each and every individual. Classroom management, it refers to a wide variety of skills and techniques that teachers use to keep students organized, orderly, focused, attentive, on task, and academically productive during a class. So classroom management is in itself a wide subject. हम सभी ये ध्यान देंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट सिर्फ एक टॉपिक को डील नहीं करता है, ये कई सारे की कॉन्सेप्ट्स को डील करता है और हर एक कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना है। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह क्लासरूम मैनेजमेंट जो पहला की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है वो है ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीचर्स। Whenever we enter the classroom, we as a teacher have to ensure that the classroom is orderly, that it is set in a proper manner. Suppose एक bench, एक desk आगे पीछे है, it is the duty of the class teacher to maintain it properly. If there is a student who is not paying attention on the board, it is the duty of the class teacher to seek that student's attention on the board. If there is a student who is playing with his or her pen, it is the duty of the teacher to attract the focus of that student. So the first subtopic is being organized. The classroom has to be organized, and it does not require only the students to be organized. It requires the teachers as well to be organized. In my career as an educator for the last 19.5 years, I have seen many teachers who are themselves not organized in a classroom. Some of the teachers, they stick to the corner of the classroom. कुछ टीचर्स वैसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कोना पकड़कर सिलेक्टेड 4 बच्चों को पढ़ाते हैं। A teacher is responsible for each and every of the student present in the classroom. एक टीचर की जिम्मेदारी अगर क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं, his concentration should go to the 40 students because he is a stakeholder of the 40 students present in the classroom. So a teacher first of all requires himself or herself to be organized. Then he has got to organize his or her 40 students. ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज की शुरुआत अच्छी होती है तो हम ये मानते हैं उसका अंत भी अच्छा होता है। तो शुरुआत हमें अपनी पोजीशन से करना है। अब तो सी वेयर माय पोजीशन इज। हमने भी बात किया क्लासरूम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए।
इसके बाद सेकंड टर्म आता है फोकस्ड। क्लासरूम फोकस्ड होना चाहिए। अब क्लासरूम फोकस कैसे होगा? Many of the teachers have seen they come to the class, they start imparting lessons. ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को मालूम हो कि आज का लेसन क्या है। This chalk and board activity is very important in our pedagogy. हम अपने बीएड के लेसन्स पे ये पढ़ते हैं कि जो भी क्लासेस हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, we have to write the name of the chapter, the heading and a subheading on the blackboard or whiteboard, whatever it is. वहां से एक फोकस एरिया खींचते हैं बच्चों की, वो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, या वी हैव टू लर्न दिस टॉपिक एंड इफ देयर इज अ सब टॉपिक, प्लीज डू नॉट शाई अवे टू राइट द सब टॉपिक्स, लेट द लर्नर्स नो व्हाट दे आर लर्निंग। Let me recall from my example from DAV Public School Swan. I was a student of DAV Public School Swan. मेरे टीचर आए क्लास पे, वो पढ़ाना शुरू कर दे एंड एट द एंड ऑफ द क्लास आई आस्क्ड माय बैचमेट टीचर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एंड सम ऑफ देम वंडर्ड सीरियसली व्हाट वाज द टॉपिक दैट द टीचर वाज टीचिंग। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव फैक्टर है टीचर की। हमें सबसे पहले टॉपिक मेंशन करना होगा, दे आफ्टर विल हैव टू मेंशन सब टॉपिक्स सो दैट द लर्नर्स नो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं वो टॉपिक और सब टॉपिक्स एक दिन पहले बता देते हैं, जिससे लर्नर्स खुद पढ़ कर आते हैं एंड व्हेन द लर्नर्स रीड बिफोर द टीचर्स स्टार्ट imparting lessons the teaching becomes participatory. This is our 21st century skill. My dear friends, the best teaching in the world is participatory methodology of teaching, where the teachers and the students they converse, they participate in the teaching and learning process. Suppose मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, आज मुझे बच्चों को पढ़ाना है प्रोनाउंस। मैंने बच्चों को बता दिया कि भाई मुझे कल प्रोनाउंस पढ़ाना है एंड दे लर्न द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। बच्चे खुद से पढ़ कर आएंगे एंड आई विल बी देयर asking a student, for example, Shahid, can you tell me what is a pronoun? Let Shahid come up with his raw answer. Sir, pronoun is the name of a person. Pronoun is a word that is used instead of a noun. मुझे पूछने दीजिए what is a noun then? जब बच्चे आंसर्स देंगे और उस आंसर्स पे प्रोनाउन सीखेंगे, that would be the best methodology of teaching. Suppose मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है, एक दो दिन पहले बच्चों को अनाउंस कर दिया है कि फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है, बच्चे फोटोसिंथेसिस पढ़ कर आएंगे एंड व्हेन द चाइल्ड लर्न्स इन द क्लासरूम ही हैज समथिंग सब्सटेंशियल टू रिलेट एंड कोरिलेट, हमें पढ़ना है और वहां बच्चों की लर्निंग एक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो। सो हियर वी विल हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, वी विल हैव टू बी ऑर्डरली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑर्डरली हम कैसे करें? क्लासेस में बच्चे बैठे हुए इन रोज एंड इन कॉलम्स, आपको लगता है किसी बच्चे को हल्का सा साइड करना है सो दैट द चाइल्ड सीज द बोर्ड क्लियरली, सो दैट द बोर्ड बिकम्स एक्सेसिबल टू द चाइल्ड। आप उसको चेंजेस कर सकते हो। यूज अ टाइम टू सेट द क्लासरूम बिफोर स्टार्टिंग द क्लासरूम। कुछ टीचर्स वैसे भी होते हैं जो क्लासरूम स्टार्ट करने के बाद क्लासरूम को सेट करते हैं, वो सिर्फ अपना टाइम के लिए है, he or she is filling the time of 40 other students, जो बहुत dangerous, बहुत typical, बहुत ज़्यादा negative है। So we'll have to keep the class ordered. They have to be focused. Am I audible to everyone? Yes. Good. The third is focused. Throughout my teaching career, I've heard many teachers complain, क्लास में बच्चे शरारती हैं, क्लास में बच्चे ध्यान नहीं देते। My dear friends, it all depends upon the teacher who is in the classroom कि बच्चे शरारत करे या नहीं, बच्चे क्लास में अटेंटिव हुए या नहीं। It depends upon the teacher. As you enter the classroom, feed it in your mind कि मुझे क्लासरूम हैंडल करना है, बच्चे शरारत नहीं करेंगे, बच्चे फोकस्ड रहेंगे। कुछ जनरल टिप्स मैं देता हूं जो मैंने अपनी ही लाइफ से सीखा है। वी लर्न डेली फ्रॉम आवरसेल्व्स, वी लर्न डेली फ्रॉम अदर्स। जैसे ही मैं क्लासरूम एंटर करता हूं, जो मेरी वॉइस है
उससे ज्यादा आवाज में मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाता है। जैसे ही मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ध्यान अट्रैक्ट होता है, द टीचर इज कॉलिंग गुड मॉर्निंग एंड दैट इन अ लाउडर वॉइस। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी वॉइस काफी स्लो है, लेकिन जैसे मैं क्लासेस में आता हूं मेरी वॉइसेस लाउड हो जाती है। इट इज पर्पस टू सीक द अटेंशन ऑफ माय लर्नर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो बच्चे होते हैं टेंडर एज, ऊंची आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, ऊंची आवाज से डरते हैं, ऊंची आवाज से फोकस होते हैं। दिस इज अ गुड एरिया टू सीक द फोकस ऑफ द लर्नर्स। देयरआफ्टर जैसे ही टीचर बोलते हैं वो बोर्ड पे लिखते हैं। हमारे पेडागॉजी में हमें सिखाया जाता है व्हेनेवर टीचर एंटर्स द क्लास हिज और हर फोकस शुड बी ऑन द एंटायर क्लास। हम बोर्ड पे मुड़ने जैसे ही जाकर मुड़ते हैं लिखने के लिए, दो बच्चे यहां बात कर रहे हैं। इट इज माय ड्यूटी टू हैव अ व्यू ऑन माय स्टूडेंट्स। तो बड़ा सिंपल है, बोर्ड पे मुझे कुछ लिखना है, आई राइट इन दिस वे सो दैट आई हैव अ ग्लिम्स ऑफ ऑल ओवर द क्लास। हम क्लास को डिस्टर्ब करने का मौका नहीं है। अगर आप क्लासेस को डिस्टर्ब करने का मौका देंगे, क्लासेस डिस्टर्ब होंगे। और अगर वेल प्लान टीचर क्लासेस को डिस्टर्ब करने का मौका नहीं देगा तो क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो क्लासेस को ऑर्डरली कैसे करना है? इट इज इन द पेडागॉजी दैट वी टीचर्स लर्न ईच एंड एवरी डे इन आवर प्रैक्टिकल क्लासेस। देयरफॉर वी हैव अटेंटिव। बच्चे अटेंटिव कैसे होंगे? हमें अटेंटिव हो जाना होगा। A teacher is supposed to look into the eyes of each and every student. जैसे ही टीचर हर एक बच्चे की आंखों में देखते हैं, बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप हमारे टीचिंग सोसाइटी का ही है। टीचर्स आते हैं, उन्होंने देखा कि 4 स्टूडेंट बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, कौन सारे क्वेश्चन से ही 4 स्टूडेंट्स। एज अ रिजल्ट बैक बेंचर्स शूट अप करते हैं, बैक बेंचर्स बातें करते हैं, दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। ये टीचर की जिम्मेदारी है, जितना ध्यान इन पर है उतना ध्यान उन पर होना चाहिए। आपने नोटिस किया जैसे ही मैंने एंटर किया, आई हैव पीप्ड इनटू ईच एंड एवरी आई प्रेजेंट हियर। मुझे ध्यान में है हर किसी का मास्क किस किस कलर का है। मेरा ध्यान ये भी है किसके शूज कहां पर प्लेस्ड है, और कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं टोप भी दूंगा। A teacher has to be effective in order to bring about the class effective. ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट। मुझे याद है जब मैं पहली बार प्रिंसिपल बना था, डाउन 10 years, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है प्रिंसिपल। सीरियसली बाय गॉड, बचपन से मुझे उम्मीद बड़ा शौक था that I should be a principal of a school। अरबा निशाम सर मेरे साथ थे उस टाइम, उन्हें याद होगा मैं मरा जा रहा था प्रिंसिपल बनने के लिए। I was a good teacher then। अब मुझे लगता है कि प्रिंसिपल से अच्छा टीचर बनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती है। सीरियसली मैं चाहता था प्रिंसिपल बनना, और जैसे ही प्रिंसिपल बना देयर केम अ स्कूल ऑफ टीचर्स इन माय चैम्बर। सर बच्चे बदमाशी कर रहे हैं सर, बच्चे इनडिसिप्लिन्ड है सर, इन बच्चों को निकाल दीजिए सर। मैंने कहा किस क्लास में? सर 9th में। And I was very sure कि 9th में most promising students। मैंने कहा मेरी क्लासेस में बदमाशी नहीं करते। उन्होंने कहा सर आपकी क्लासेस में नहीं करते होंगे, मेरी क्लासेस में करते हैं। कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट मी सी द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। टीचर पढ़ाने चले गए, मैं खिड़की में देखा था, वो बच्चों की शरारत थी, पूरी शरारत सीरियसली टीचर की। सीरियसली टीचर केम टू क्लास, क्या पढ़ना है? अटेंड इन द बुक। तुम बुक लाओ। पढ़ाना शुरू किए। एक बच्चा वहां बात करता है, टीचर ने वहां ध्यान भी नहीं दिया। अगर टीचर ध्यान देते तो वो बच्चा बात नहीं करता। मानते हैं मेरी बात सब लोग? अगर टीचर अगर ध्यान से देख लेता उस बच्चे को, वो बच्चा बात नहीं करता। एक बच्चा शू टैप कर रहा था, टीचर ने को खिड़की से आवाज दे रहा, सर सी द चाइल्ड इज टैपिंग अ शू। मैंने कहा क्वाइट। वो शू टैप करता, टीचर पर सर तुम नहीं पढ़ेगा तो फिजिक्स का पी नहीं लगता। और इसलिए मेरे को बहुत नफरत होती है ऐसे टीचर्स जो फिजिक्स का पी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री का सी पढ़ाते हैं, इंग्लिश का ई पढ़ाते हैं। सीरियसली बहुत नफरत है ऐसे लोगों से। भाई आप अपने लेसन पढ़ो, दैट इज एनफ, दैट इज एनफ।
तो टीचर को लास्ट में मैंने बताया सर आप एक काम करो, आप मेरे क्लासेस आओ, ऑब्जर्व करो मैं कैसे कैसे क्लासेस लेता हूँ, देर आफ्टर आप देख रहे हैं कि आप में कौन कौन सी कमी है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, एट द एंड ऑफ द क्लास मैंने कहा सर आपने क्या नोट किया, द पेपर वाज ब्लैंक। एक भी चीज नहीं था जो उन्होंने मुझसे सीखा। मैंने कहा सर जुल्म कर रहे हैं आप मेरे ऊपर, अब दूसरी क्लास है ये नोटिस करिए, दूसरी क्लास पे फिर ब्लैंक। थर्ड टाइम मैंने कहा सर आप मेरी क्लास के अंदर बैठे मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या कहता हूं। मैं जैसे एंटर किया मैंने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, 90% स्टूडेंट का गुड मॉर्निंग, एक अतुल चुपचाप से बैठा हुआ था, बोला अतुल आई नीड अ गुड मॉर्निंग फ्रॉम यू एज वेल, सॉरी सर गुड मॉर्निंग, अगेन आई नीड अ गुड मॉर्निंग फ्रॉम यू, सॉरी सर गुड मॉर्निंग। अब वो स्ट्रेट हो गया, बाकी जितने अतुल जैसे लोग थे वो स्ट्रेट, बाप रे मेरा भी नंबर है। सीरियसली टीचर्स में ये अथॉरिटी होता है। आज के टॉपिक एक अथॉरिटी में डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। टीचर्स में ये अथॉरिटी होता है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ बोल दे तो स्टूडेंट जितना भी बदमाश क्यों ना वो भी ठीक हो जाएगा। और यकीन मानिए हम सभी जब स्टूडेंट हम सभी छोटे से शरारती थे, मानते हैं? वेरी गुड, आप सभी ईमानदार लोग हैं। आपसे पहले भी 3 दिन पहले गया मैं, मेरे एक वर्कशॉप था, वहां पर मैंने टीचर से कहा हम सब शरारत करते थे, ऑल वर क्वाइट, सब सीधे थे, यस सर, सब सीधे थे, यस सर, झूठे हैं आप लोग, मैंने कहा हम सभी शरारती थे। तो बच्चों को बस एक नजर से देख जाए ना, बच्चे शरारत नहीं करेंगे। और प्रिंसिपल्स को परेशान नहीं करें, प्रिंसिपल ये बच्चा ऐसा, प्रिंसिपल वो बच्चा ऐसा। जो टीचर ऐसा करता है वो अच्छा टीचर नहीं है। In fact, a teacher is supposed to be a facilitator to the principal. वो प्रिंसिपल तक कोई शिकायत जाने ना दे, वो सबसे अच्छा टीचर। वो बच्चों की सारी समस्याओं को सॉल्व कर ले, वो अच्छा टीचर। वो क्लासरूम को अच्छा से हैंडल कर ले, वो अच्छा टीचर। वो बच्चों को मोटिवेट कर ले, वो अच्छा टीचर। वो अपने स्कूल का नाम रोशन करवाए और क्रेडिट प्रिंसिपल को दे, बड़ा मुश्किल काम है। सीरियसली, आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम टीचर्स, वो अच्छा टीचर। और सीरियसली ये सारा काम करने के बाद ही हम पहली बार वाइस प्रिंसिपल बने थे, और गवाह आपके सामने एडवर्सर मौजूद है। It took me more than 8 years to become a vice principal, and again it took me more than 5 years to become a principal. वो अच्छा टीचर होता है। और सीरियसली जो अच्छा टीचर होता है, प्रिंसिपल्स के ध्यान उस पे होती है, मैनेजमेंट के ध्यान उस पे होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि वो बच्चों को कैसे फोकस रखे, बच्चों को कैसे अटेंटिव रखे। तरीका मैंने बताया, क्लासरूम एंटर करते गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपको बिल्कुल बीच में खड़े हो जाना, ध्यान से सारे बच्चों को एक नजर देख जाना है, बस। जब आप बोर्ड पे जाए, you have to write in such a manner that we're tilted towards the students. बच्चों को पता हो कि अगर हम शरारत कर रहे थे, टीचर इज ऑब्जर्विंग, इतना काफी कोई शरारत नहीं हो। If a teacher asks asks questions from a particular student, he should switch over to another row, another column, the last bench, the second last bench. इससे फायदा होता है। और सबसे अच्छा वो टीचर है जो अपने एक्ट में मूवमेंट करता है। बच्चों को पता चले टीचर को यहाँ से नहीं दिख रहा है तो यहाँ से तो दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा तो वहां से तो दिख रहा है, और टीचर वहां भी आ सकता है, बच्चों को ये पता रहे। तो the children would be attentive there. The next is short task. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक टीचर क्लासरूम एंटर किए हैं फॉर पर्टिकुलर टास्क टू इम्पार्ट लेसन्स, और टीचर का रोल कब खत्म होगा, जब बच्चों को लेसन्स मिल जाए। बड़ा ध्यान देंगे। एक टीचर क्लास एंटर किए हैं टू इम्पार्ट लेसन्स, बच्चों को लेसन्स कब मिल जाएगा, बच्चों का टीचर का टास्क कब कंप्लीट हो जाएगा, जब बच्चों को लेसन्स मिल जाए। जस्ट अ फ्यू नोट्स, नो। जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स, नो। जस्ट अ फ्यू स्लाइड्स, नो। बच्चों में एबिलिटी डेवलप हो जाए, और वो एबिलिटी इस चीज का हो टू आइडेंटिफाई द टॉपिक, टू एक्सप्लोर द टॉपिक, टू एक्सपेरिमेंट विद द टॉपिक। ये 3 प्रीरिक्विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टीचर्स के लिए। बच्चे टॉपिक को आइडेंटिफाई कर ले, पहचाने, पहली चीज। बच्चे टॉपिक को एक्सप्लोर करें, आइदर बाय योर टीचिंग और एनी अदर टीचिंग, एक्सप्लोर करें। तीसरा चीज उस पर एक्सपेरिमेंट करें। ये तीनों चीज जिस दिन हमने डिलीवर कर दिया, आप कंप्लीटेड में टास्क।
और तीनों में से एक भी कमी कर दिया, आई हैवंट डिलीवर्ड टास्क। मैं बहुत बढ़िया टीचर हूं, मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद क्लास में 4 बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आया। आई एम नॉट वर्थ अ टीचर, बिलीव मी, आई एम नॉट वर्थ अ टीचर। अगर मेरे पढ़ाने के बाद क्लास में 40 स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम याद रख सके, टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, आई एम द बेस्ट टीचर। बस टॉपिक का नाम याद रखें, टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, बस 2 ही काम हो, आई एम द बेस्ट टीचर। अगर उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दे, आई एम द सेलिब्रेटेड टीचर। बस यही जरूरत है। हमने देखा है कि कई सारे टीचर्स आते हैं, दे हैव लेसन प्लान्स, दे हैव लेसन्स, बच्चों को पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, 4 समझते हैं, 36 नहीं समझते। We have to cater to the needs of 40 students in a classroom. You have to be on task. हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर वर्कशॉप में मुझसे टीचर्स पूछते हैं। अलवर सर को याद है कि लास्ट वर्कशॉप में मेरे साथ थे, इट वाज बैक डेटेड मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले। एक टीचर खड़े होकर हाथ से पूछे, सर मेरे क्लास में कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, कुछ बच्चे बहुत कमजोर हैं, अगर मैं ब्रिलियंट पे फोकस करूंगा तो कमजोर छूट जाएगा, कमजोर पे फोकस करूंगा तो ब्रिलियंट छूट जाएगा, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैथ्स टीचर होंगे? यस। मैंने कहा दुनिया के सारे मैथ्स टीचर को यही फॉलो। एनीवेज, मैं एक कहानी सुनाता हूं। मैं कंसीडर करता हूं दैट वी ऑल टीचर्स आर मदर्स, कि हम सारे टीचर्स मदर्स हैं, क्योंकि मदर से बढ़िया कोई टीचर नहीं होती, बिलीव मी, मदर से बढ़िया कोई टीचर दुनिया में नहीं होती। एक मदर के 2 बच्चे हैं, एक नॉर्मल बच्चा और एक बच्चा हैंडीकैप्ड। वो कभी सवाल नहीं करती है, मैं नॉर्मल पे ध्यान दूंगी तो हैंडीकैप्ड कमजोर हो जाएगा, हैंडीकैप्ड पे ध्यान दूंगी तो नॉर्मल कमजोर हो जाएगा। सी डिवाइसेस आर ओन वे, वो अपना खुद के तरीका ढूंढ कर निकालती है। वो कहती है जो बच्चा हटक करता है, जॉब इट उस खंबे को छू कर आओ, सी टीचर्स हिम टू रन, एट द सेम टाइम सी होल्ड्स द फिंगर ऑफ द हैंडीकैप्ड बॉय और कहती है चलो तुम चलना सीखो। एक ही टाइम पे, एक ही 40 मिनट्स के क्लासरूम में वो दोनों एक्शंस करती है, दोनों का पर्पस को सर्व करती है, और कभी नहीं पूछती मैं इसको करूंगी तो उसको छोड़ दूंगी, उसको करूंगी तो उसको छोड़ दूंगी। As teachers, as educators, we have to devise our own way in our lesson plans so that it serves to the needs of each and every student in the classroom. अब वो हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, बिलीव मी। अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, आप मैथमेटिक्स में द बेस्ट तरीका निकाल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं, यू कैन डिवाइस योर ओन वे। आप अगर हिंदी के टीचर हैं, आप अपना तरीका खुद निकाल सकते हैं। एंड बिलीव मी, बिलीव इन योरसेल्फ, आपसे अच्छा दूसरा तरीका कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। बी इट अ रिसर्च स्कॉलर, बी इट अ पीएचडी, बी इट अ सेलिब्रेटेड टीचर विद 40 इयर्स एक्सपीरियंस, अगर आप करना चाहें तो आप तरीका निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम आज जो मैंने इतना कहा, आज से सारे टीचर्स खुद अपना तरीका निकालेंगे। वेरी गुड। और जिस टीचर ने बढ़िया तरीका निकाला, मैं दोबारा आऊंगा, मेरे तरफ से एक ग्रैंड अवार्ड होगा, और जिसने नहीं निकाला, मैं कम से कम 400 बार उनको दोबारा बोलूंगा, आप प्लीज वो तरीका ढूंढकर निकालें। Should I expect it from all of you? Okay. चलिए बात करते हैं एकेडमिकली प्रोडक्टिव। एक स्कूल का पर्पस होता है, एक स्कूल का पर्पस होता है एकेडमिकली बच्चों को नरिश कर। We are got to nourish and nurture our kids who will be the pillars of future India. तो ऑब्वियसली वो नरिश हम कहाँ करेंगे? फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न। जिस सब्जेक्ट का मैं टीचर हूँ, वो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है, जो लेसन्स मुझे इम्पार्ट करना है, वो लेसन्स मुझे पढ़ाना है। मैंने पहले बताया कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, और कुछ मुझे से बहुत कमजोर होते हैं। मुझे सबको सिखाना। अब सिखाने का तरीका तो एक है, एक तरीका ढूंढ कर निकालना है जिससे बच्चों को सिखाया जाए। कई बार बिना प्रिंसिपल मैं बच्चों के साथ टेस्ट लेता हूँ, पर्टिकुलरली स्कूल में एंट्री करने के लिए, एलकेजी और यूकेजी। कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज बेटर, यू मामा और पापा? इसमें बच्चों की आईक्यू, बच्चों का रिस्पांस सिस्टम जज करता हूं। कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा दिस इज अ टॉफी, विल यू शेयर दिस वन पे?
कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा मेरे को A to E सुनाओ। कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे 11 के स्पिरिट सुनाओ। आप सोचते हैं मैं बेईमानी कर रहा हूँ सारे बच्चों के साथ। इनफैक्ट मैं ईमानदारी कर रहा हूँ। मैं बच्चों के एंट्री करते समय ऑब्जर्व करता हूँ बच्चा कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन उसको पुट अप करता हूँ। अगर कोई बच्चा फास्ट बॉल खेलता है, फास्ट बॉल डालो से, कोई स्पिन बॉल खेलता है, स्पिन बॉल डालो से। Let there be diverse players and let there be a superb teacher in you who can deliver to the needs of 40 students. इससे हमारे बच्चे एकेडमिकली प्रोडक्टिव बनेंगे और ऑब्वियसली एकेडमिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं कितना भी अच्छा टीचर रहता, अगर मेरे बोर्ड में मार्क्स 40% होते, कोई भी स्कूल वाला मुझे नौकरी नहीं देता। मानते हैं आप लोग? एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड एकेडमिक्स और हम बच्चों को एकेडमिकली तैयार करें। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एक वीडियो दिखाना चाहूंगा इनइफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट को। बड़ा ध्यान से देखेंगे, सबका वीडियो है और बड़े फुल कर देंगे। अगर लाइट्स ऑफ कर सके सही तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं चाहूंगा सब लोग बिल्कुल गौर से देखें। ओके जब से सर स्पीकर को कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ तो स्टार्टिंग से प्ले कर रहे हैं। सिस्टम से कम कर दो। ओके 50% कर दिए, साफ है। ओके थैंक यू। 50 सर। ओके दैट्स इनफ, थैंक यू। प्लीज जरा ध्यान से देखेंगे इसे। Ineffective, sir. Thank you.
So that was a living example of ineffective classroom management. That was a living example of ineffective classroom management. आप में से कोई अपने हैंड्स रेज करेंगे अगर आंसर देना चाहेंगे तो वीडियो दिखाने से पहले मैंने कहा था इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैंने कितने बार रिपीट किया था इस बात को। आई डिड आंसर फॉर यू, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। आंसर फॉर यू मैम, बोला था क्या? वेरी गुड मैम, गुड गुड गुड, यू आर गुड लिसनर्स, ये अच्छी बात है। और 4 टाइम्स ओके ओके सर, ओके व्हाट आंसर, ये अच्छी बात है। और टीचर्स शुड हैव सरप्राइज क्वेश्चंस लाइक दिस। आपने एक टास्क दे दिया, वो टास्क फुलफिल हुआ ये नहीं। अभी जिन लोगों ने हाथ उठाया था वो प्राउड फील कर रहे थे, बाकी लोग सोचते थे, ओह माय गॉड आई मिस्ड दैट, ओह माय गॉड आई मिस्ड दैट। यही टीचर्स को करना है क्लासरूम में। लेट द स्टूडेंट्स आंसर, मोटिवेट योर स्टूडेंट्स टू आंसर, मोटिवेट देम टू अटेंड टू द क्लासेस। इस वीडियो में आपने देखा था, ये यूएस का एक स्कूल था, एक गवर्नमेंट स्कूल था। यहाँ कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे थे और माशाल्लाह हमारा हजारीबाग बहुत अच्छा जगह है, इतनी बदमाशी अपने यहाँ नहीं होती। मेरी एजुकेशन दिल्ली जामिया से हुई है, वहां तो जमकर बदमाशियां होती थे। अपना झारखंड बिहार बहुत सुंदर, यहाँ इतनी बदमाशियां नहीं होती। आपने देखा जैसे ही क्लास टीचर एंटर करती है, वहां पहली गलती थी क्लास टीचर की, दैट द स्टूडेंट्स वर अलाउड टू स्टेप इनटू द क्लासरूम। द क्लास टीचर, द टीचर, सब्जेक्ट टीचर ने सी एंटर्ड आफ्टरवर्ड्स। हम ध्यान देंगे, हम अपनी हर गलतियों से सीखेंगे, हमने गलती कहा की। एंड अ मैन लर्न्स गोस फ्रॉम हिज और हर मिस्टेक्स। यकीन मानिए अपनी गलतियों से मैं डेली सीखता रहता हूं। आज भी मैंने एक चीज सीखा है। आज आपके वर्कशॉप पे मुझे आना था, मैं बिल्कुल 14 मिनट्स पहले अपने घर से निकला। अब मैं भूल गया था क्रिसमस है, रोड पे भीड़ होगी। आई अराइव हियर 5 मिनट्स लेटर। आधे साथ मिथिलेश सर से बोला, सुरभि मैम से मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, आई रीच्ड 5 मिनट्स लेट। और ये गलती मेरी है। अब मुझे ये जानना होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं निकलूं, अगर वो फेस्टिव सीजन है तो मैं 5 मिनट पहले निकलूं। अपनी गलतियों से सीखने वाला आदमी सक्सेसफुल होता है। तो चलिए देखते हैं टीचर्स की क्या क्या गलती थी। पहली गलती ये थी, द स्टूडेंट्स वर अलाउड इनटू द क्लासरूम एंड द टीचर केम आफ्टरवर्ड्स। टीचर को पहले क्लासरूम में आना, फिर स्टूडेंट्स को एंट्री करवाना, सो दैट टीचर यहाँ पे खड़े कर देते स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं। बस टीचर से ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तरीके से आएंगे। अगर टीचर नहीं देखेंगे, आपने अलाउ किया शरारत करने को, चिल्लाने को, मूवीज का नाम अच्छे ले रहे थे लेने को, और एक बच्चा तो बढ़िया से डांस भी कर दिया, जस्ट लाइक दैट। एक बच्चा चेयर पे पटक कर चला गया। वेरी गुड कागज, प्लीज थैंक यू, वेरी गुड सर। Class full of naughtiness. Very good. Class was full of naughty students. तो ऑब्वियसली ये टीचर ने अलाउ किया ये सब करने को।
और यही टीचर जाकर प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, क्लास 9A इज वेरी नॉटी। अब प्रिंसिपल पहले उस टीचर को जॉब देंगे, फिर क्लास देंगे, फिर सैलरी भी देंगे। अब वो टीचर का कंप्लीट कर क्लासेस नॉटी। A bad workman quarrels with his tools. क्लास का मैनेज करने का काम टीचर का था, प्रिंसिपल ने वो जॉब स्पेसिफाइड किया था। इमेजिन करो आपकी मेड आकर कहेगी, साहब बहुत गंदा फेंकते रूम में, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्या करेंगे? भागो मेड यहाँ से, कहते वो सारे देते गंदा साफ करने के लिए। सिमिलरली प्रिंसिपल भी कई बार गुस्सा कर टीचर से कहते हैं यू आर सपोज्ड टू सी द क्लास, और गलती कहने की हम टीचर्स की होती। जब मैं खुद एक टीचर था, when I was a TGT, I started my career as TGT, thereafter I became PGT and so on. तो मुझे लगता था मेरे प्रिंसिपल मुझे डांटते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं, सब प्रिंसिपल का कसूर है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, वो मुझे डांटते हैं। और आज जब मैं अपने टीचर्स को डांटता हूँ, मुझे लगता है वो भी वही सोचता हो। सीरियसली कहना, जब आप प्रिंसिपल बनेंगे आप भी यही सोचेंगे। तो ये हम टीचर्स की जिम्मेदारी है कि क्लास को कंट्रोल करें। सबसे पहले खुद एंटर करें, बिल्कुल बीच में खड़े रहें, नजर रखें। और हमें मालूम है कि चाइल्ड ए, बी या सी ज्यादा शरारत करेगा, सिंस आई नो द स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कौन शरारत करेगा, उसे बड़ा ध्यान से देखें। और हमारी नजरों में वो ताकत, वो दिव्य शक्ति है कि बच्चों से कंट्रोल हो जाए। तो टीचर की पहली गलती वो थी। दूसरी गलती सबटाइटल में मैंने नीचे लिख भी दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था, ठीक है, जो वीडियो मुझे सीबीएसई ने कभी गिफ्ट किया था। आज तक मैं संभाल के रखता हूँ, उसे यूज करता हूँ और कई बार सीबीएसई को फिर से गिफ्ट करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें सबटाइटल्स लिखा होता है। क्लास में टीचर है, बच्चे शरारत करें, कम ऑन बी क्वाइट। क्लास में बच्चे कितने हैं? 40। सबको कह रहे हैं शांत रहने को, तो सारे बच्चे शरारत कर रहे थे। 4, 5, 6, 7 टीचर्स नीड टू आइडेंटिफाई सच स्टूडेंट्स। उनका नाम लेकर बोले, अमित बदमाशी नहीं, राहुल बदमाशी नहीं, सुलेखा डोलूदार, शांत हो जाएंगे। अब सेम यही है टीचर्स, क्लास में टॉपिक्स में कुछ नोट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लास क्वाइट, बदमाशी का केला राहुल किया, डांट किसको है? मेरे को बचपन की याद आती थी, जब मेरी एक बड़ी बहन थी जिससे मेरी खूब लड़ाई होती थी बचपन में। लड़ाई इसलिए होती थी, मम्मी ज्यादा प्यार उसको करती, पापा ज्यादा प्यार उसको करते थे, मुझे लगता था कि हम सोते हैं। तो अक्सर होता था कुछ झगड़ा, और जहां हम लोग दोनों गए मम्मी पास कमेंट करने, मम्मी दोनों को डांटते थे। Being a child, I wondered कि गलती तो इसकी थी ना, मुझे डांट क्यों रही? सिमिलरली बच्चे भी ये फील करते हैं क्लास क्यों शांत रहेगा, सिर्फ एक राहुल को शांत रहना है? Such teachers are not good. You have got to identify such learners. अब बड़ा सवाल, अच्छा सवाल है। टीचर्स, कई सारे टीचर्स वर्कशॉप में मुझे पूछते हैं, तो दिस इज योर होल क्लास, कहीं से एक आवाज आई, मुझे नहीं पढ़ना है, आप क्या करेंगे? सवाल अच्छा है, आंसर भी अच्छा होगा। बड़ा सिंपली मैं ध्यान दूंगा कि बच्चों ने कहां से शरारत की। सपोज मुझे लगता है कि आवाज बिल्कुल यहां से आई है, ऑलमोस्ट इतने दूर से। मेरा कंसंट्रेशन ये होगा, बड़ा ध्यान से मैं खड़ा रहूंगा यार। जिसने आवाज किया था, थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन बदलेगा किसी का, जहां बदला उसे पकड़ा, वरना समझ टेल मी हु डिड दिस, नो आई डोंट नो, व्हाई डोंट यू नो, ऐसे मिलेगा। If I want to correct an answer, there would be a written answer first. और अगर हम सोचते रहते मुझे कोई स्टूडेंट बताता नहीं है, स्टूडेंट्स में यूनिटी है, मॉनिटर भी रिस्पांस नहीं देता है, स्कूल मैनेजमेंट कैसे कैसे बच्चों को ले देता है, कभी एक स्कूल मैनेजमेंट कैसे कैसे टीचर्स को ले देता है, who are not fully prepared. Tough lines but true, मानते हैं? Tough lines but true. मैं भी कभी एक बहुत अच्छा टीचर नहीं था, जब मेरे स्कूल मैनेजमेंट ने मुझे ले लिया था। बात में थैंक्स टू दैट स्कूल मैनेजमेंट, उन्होंने ही मुझे अच्छा टीचर बनाया। सिर्फ दिल से थैंक्स देता हूं। चलिए फिलहाल बात करते हैं हम, ये टीचर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इस मामलों को कैसे एड्रेस करे। टीचर ने कहा क्लास बी कोई कोने में खड़ी होगी, बच्चे सारे खड़े रहते, अगर वो बीच में खड़ी होती, जिस तरह मैंने एक राउंड लगाती, बच्चे शरारत करते, और शरारत देख के सिर्फ हल्का सा हल्ला किया, जोर से यो किया,
चेयर पटक दिया, पेपर फेंक कर मारा, एक बच्चे ने पूरी डांस कर दी। गलती टीचर। आपने देखा होगा एट द एंड में टीचर ने टास्क दिया था, गो टू द मैथ सेंटर, बी रेडी फॉर द मैथ सेंटर। वहां से बदमाशियां कम हो गई। फील किया आप लोगों ने? जहां बदमाशियां चरम पर थी वहां से कम हो गई। कोई गेस कर सकते हैं कि वहीं से बदमाशियां कम क्यों हो गई? एनी गेसेस फ्रॉम एनीवन? गलतियों कोई दिक्कत नहीं? They were given tasks. हाँ मैम, They were given tasks. वेरी गुड। व्हाट्स अ गुड नेम मैम? Pratibha. प्रतिभा। लेट जॉइन हैंड फॉर प्रतिभा मैम, वेरी गुड। नहीं चलेगा, ताली दिल खोल के आना पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड। अगर ताली बजाने में कंजूसी करेंगे, मैं डायरेक्टर मैम से रिक्वेस्ट करूंगा सैलरी में भी कंजूसी कीजिए। अगर हम टीचर बच्चों से 100 मार्क्स चाहते हैं तो हमको भी 100 मार्क्स का लैक आंसर्स देना पड़ेगा। ओके, चल, वेरी गुड प्रतिभा मैम। दे वर गिवन अ टास्क, बच्चों को एंगेज कर दे आप, दैट्स इनफ फॉर देम। जस्ट एंगेज कर दे, दैट्स इनफ फॉर देम। वो शरारत करना भूल जाएंगे और वो टीचर्स लेट मी वेट कर लो, जितना बदमाशी करना है। यकीन मानो 365 दिन कम पड़ जाएंगे बच्चों को। सीरियसली हम पढ़ जाएंगे। वेट नहीं करना, कितना टास्क बच्चे कर रहे हैं। तो आपने देखा इस वीडियो में कि टीचर्स ने क्या-क्या जगह छोड़ा, कहां-कहां जगह छोड़ा और कहां-कहां बच्चों ने बदमाशी की। अगर टीचर्स अटेंटिव होती, वो सिंपली अपनी गलतियों को नहीं करते तो बच्चे ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते। और छोटे बच्चे शरारत करते हैं, हम आप सभी ने किया शरारत। आज बच्चे शरारत करेंगे, उन्हें ऑर्डरली प्लेस करना जिम्मेदारी किसकी है? टीचर्स की। अब इमेजिन करिए एक थाना प्रभारी जाके एसपी साहब से कहेगा, हजारीबाग के लोग बहुत खराब है, समझते हैं, नियम जगह संभालिए। क्या करेंगे एसपी साहब? इमेजिन करिए जो बड़ा डॉक्टर है वो छोटे डॉक्टर से कहेगा पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं इलाज करूंगा, क्या होगा? इमेजिन करिए फौजी जो बॉर्डर पे है वो जाकर अपने लेफ्टिनेंट कर्नल से कहेगा पाकिस्तानी बहुत खराब होते हैं, मैं नहीं लूंगा उनसे, बेईमानी करते हैं, क्या हो जाएगा? It got to do our task on time and effectively. वो करना हमें ही। आप वंडर करो, आप अच्छे बनना चाहते हो या नहीं बनना? और सीरियसली अच्छे बनने में बहुत फायदा है। मैं भी पहले अच्छा टीचर नहीं था, बिलीव मी। ईमानदारी से मैं अच्छा टीचर कभी नहीं था। मैं अच्छा टीचर बनने की कोशिश करने लगा। अब धीरे धीरे अच्छा टीचर बन रहा हूँ। द ट्रांजिशन इज गोइंग ऑन। और यकीन मानिए एक ना एक दिन बहुत अच्छा टीचर बनूंगा। और उस दिन अच्छा टीचर बनूंगा जिस दिन आप लोग कहेंगे कि वाकई में मैं एक अच्छा टीचर हूं। तो डेली एज लर्नर्स वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम लोगों को ये सारा काम करना है और गलतियों की जगह छोड़नी नहीं। अगर हम अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 लाए, तो हमें भी 100 आउट ऑफ 100 देना होगा, लाना भी होगा एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, 7 टिप्स फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। ये एक तालिस्मान है, तालिस्मान समझते होंगे आप लोग? ताबीज, ताबीज समझते हैं? अक्सर हम लोग ताबीज बांधते हैं। मेरी भी मम्मी बहुत बांधा करती थी बचपन में कि बेटा मेरा पढ़ने में तेज हो जाए। आज तो कोई ताबीज पे काम किया। चलिए, एनीवेज दिस इज द तालिस्मान। ये ताबीज आप लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जो आपको जिंदगी भर काम देगा। 7 टिप्स फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। इससे आप लोग कह सकते हैं 7 टिप्स फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। ये कंप्लीट स्लाइड में आपको दे दूंगा, रिवर्स करके जरूर। ये 7 टिप्स अगर आप फॉलो करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या शानदार माहिर हो जाएगा। लेट्स गो थ्रू द टिप्स। मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। लव योर स्टूडेंट्स। As teachers we have got to love our students. और यहाँ पे बैरियर है, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। मैंने पहले बताया we teachers need to be mothers. हम टीचर जब तक मदर नहीं बनेंगे तब तक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। We have to be mothers. मदर्स ने हमको बहुत प्यार किया लेकिन पिटाई भी खूब की। और कंट्रोल भी मदर्स होते थे। मम्मी, मेरे को याद है स्टैंडर्ड 8 में मैं पूछा था मम्मी मैं गो टू वॉशरूम, मम्मी वॉशरूम जाना है? हाँ। 5 मिनट पहले गए थे, सॉरी मम्मी अपनी जो बहुत प्यार करती थी और वॉशरूम के लिए भी पूछना पड़ता था। तो वी हैव टू लव आवर स्टूडेंट्स बीइंग मदर्स। कई सारे मेल टीचर सोचेंगे सर मैं तो मेल हूं। इमेजिन कर लीजिए आप मदर हो। कई सारे सिंगर टीचर सोचेंगे सर मैं भी तो सिंगर हूं। इमेजिन कर लीजिए। The caring nature should be there. वेरी गुड।
The caring nature should be there. और caring nature के साथ stern eye भी होनी चाहिए. मदर में एक क्वालिटी होती है जो दुनिया के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती. Hats off to all the mothers in this world. Mothers are the greatest teachers on earth. So we have to be mother, or we have got to love our students. ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. There has to be balance in that. कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं एक पर्टिकुलर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, वो शरारत भी करते खुद पर रिस्पेक्ट नहीं, बाकी सारे स्टूडेंट्स वैसे ही मेरे जैसे सुनते हैं, हम सोते रहेंगे. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो मान लेते हैं ये बच्चा मैथ्स में अच्छा है इससे नहीं प्यार करना. आप देखो ना वो इंग्लिश में अच्छा है, he is good in sports, she is good in dances, आप उससे प्यार करो. तो there should be love for the students और ये love defined होना चाहिए and it should have certain values. Got it everyone? Next, assume the best in your students. अब ये मानकर चलो आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं. मैंने बताया कि मेरे स्कूल में भी ऐसे टीचर्स मिलते हैं. एक बार मैं राउंड पे था, एक टीचर था, तुम केमिस्ट्री का सी नहीं जानते, चुपचाप से राउंड लगा के चला गया, ऑफिस में बैठ गया और जब मैं टेंशन में होता हूँ बहुत चाय पीता हूँ, 4-5 कप चाय पी लिया. जैसे टीचर का क्लास करता हूँ मैंने बुलाया, सर आप केमिस्ट्री का सी जानते हैं? ये सब बताता हूँ. सर यू आर स्टिल अ टीचर. आई एम सॉरी सर. सर यू आर स्टिल अ टीचर. मेरी बात को ध्यान देंगे. If we were so good, if Ahsan sir was so good in English, why is Ahsan sir here? He should be somewhere else. मेरी बात समझ में? If I was so good in physics, why I am here? I should be somewhere else. There has to be better places than this. हम सब में कहीं ना कहीं कुछ कमी है और हमें मानना होगा इस बात को और अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी बच्चों पे नहीं. अब भाई लाइफ है तो स्ट्रेस आएगा, लाइफ है तो फ्रस्ट्रेशन आएगा और स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन आए तो वही काम करिए जो मैं करता हूँ. वो गाना सुनिए जो आपको पसंद नहीं, उसके बाद गाने को जितना सुनाना सुना लीजिए. पर्टिकुलरली मुझे हनी सिंह बिल्कुल पसंद है, मैं सुनता हूँ तो हनी सिंह को सुनाता हूँ. Go for a good drive, go for a good ride. It soothes your brain. और कभी भी फ्रस्ट्रेशन क्लासेस में. बच्चे बच्चे हैं. तेंदुलकर के टीचर को कहा मालूम था तेंदुलकर इतना महान बनेगा. महेंद्र सिंह धोनी के टीचर्स को मालूम नहीं था that the world would salute him. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के टीचर्स को नहीं मालूम था वो इतना महान बनेगा. यकीन मानिए सुरभि मैम के टीचर्स को भी नहीं मालूम था कितना सुंदर सा स्कूल बनेगा. and I really salute her. ऐसे जगह उन्होंने स्कूल बनाया, ऐसे नहीं कि मैं आया हूँ तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, ऐसे जगह उन्होंने स्कूल बनाया जहाँ पे एजुकेशन की बहुत जरूरत है. पर्टिकुलरली इस लोकेलिटी से मैं बहुत वेल वर्स्ड हूँ. अगर यहाँ पे ये स्कूल नहीं होता तो मैं आज भी कहता हूँ इस एरिया में डेवलपमेंट बहुत पुअर. तो हजारीबाग, थैंक यू मैम. और पर्टिकुलरली हजारीबाग के 2 वैसे स्कूल लीडर्स को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ. एक सुरभि मैम को, एक शैलेश सर को, सेंट ऑगस्टिन जिन्होंने चलाया. मेरा घर वहीं पे, मैं वहीं पे रहता हूँ, मैं जानता हूँ अगर वो स्कूल नहीं बना होता तो उस एरिया के बच्चे आज भी इसी तरह हरकतें रोड पे कर रहे होते जिससे वीडियो में आपने देखा. तो ये स्कूल से जो सोसाइटी को चेंज करता है. और सिर्फ इन दोनों के टीचर्स को मेरी ममता ये इतने महान बनेंगे, दे विल डू वंडर्स. आप सभी को मालूम है अल्बर्ट आइंस्टाइन के गाने. When he was in his diploma, पहले +2 नहीं हुआ करता था, डिप्लोमा होता था 10th के बाद. उसके टीचर्स ने कहा you are not worth studying. Seriously, you are not worth studying. आज सारे फिजिक्स टीचर आइंस्टाइन को पढ़कर पढ़ा रहे हैं, जिसके टीचर्स ने कहा था you are not worth studying. इसलिए आप सभी भी इमेजिन कि कोई ना कोई टीचर ने आपको इस तरह से डांटा होगा, तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे. There is a charm in each and every soul. ऊपर वाला बहुत इंसाफ करने वाला है. जब किसी को जन्म देता है, he sets a purpose. वो एक पर्पस भी देता है, वो इस पर्पस के लिए गया है. कल वो एक अच्छा एक्टर बनेगा, वो शाहरुख खान बनेगा, और वो शाहरुख खान वो एक्सेप्ट करेगा जो हम नहीं कर पाते. वो एक अच्छा मीका सिंह बनेगा,
वो एक अच्छा ये करेगा, एक अच्छा वो करेगा, वो करेगा। अगर टीचर्स ध्यान देते तो देयर इज अ लाइट इन ईच एंड एवरी सोल। ये मानना पड़ेगा हमें। आपने देखा होगा एक वीडियो, एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने एक बच्चे का वीडियो क्लास में बनाया, बड़ा प्यार से करा था, समथिंग जाना मेरे प्यार को भूलना जाना। कितना स्वीट है ना गाना। मीका सिंह ने उसको कॉपी किया। इमेजिन करिए बच्चा जिसको खाने के दो मिलते नहीं, खाना नहीं मिलता, एक बच्चा पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं, इसके बाल टॉर्न है, उस बच्चे से टीचर ने कितना प्यार से गाना गवाया और वो बच्चा एक इंटरनेशनल स्टार है। Excuse me, sir. We want to take a short break. तो एक टीचर ही थे जिन्होंने उसको स्टार बना दिया। वो स्टार बनाया कि मीका सिंह उसको पूछा, मेरे पास सुन, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली थ्रूआउट माय लाइफ, थ्रूआउट आवर लाइफ, वी सी डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट इल्यूजन। मुझे याद है जब मैं उड़ीसा गया था ऐसे एक वर्कशॉप में, एक स्कूल वालों ने इनवाइट किया कि सर हमारा स्कूल लास्ट 100 ईयर से चल रहा है, वो मिशनरी थे और हम लोग यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, तो हमारा स्कूल और स्कूल से अलग है, अब काइंडली वर्कशॉप में हमारे यहाँ आएंगे तो सब बड़ा अच्छा लगेगा। घूमने का मन था तो मैं चला गया उड़ीसा। एक मामूली सी स्कूल, बिल्डिंग में स्कूल था, वहाँ हर क्लास का सिस्टम अलग अलग था। सर ये क्लास में सारे सिंगर्स, ओह माय गॉड, 40 स्टूडेंट 40 सिंगर्स। सर सेक्शन में सारे डांसर्स हैं, ओह माय गॉड। सर सेक्शन सी में सारे बच्चे मार्शल आर्ट करते हैं। आई वंडर्ड ऐसा भी स्कूल हो सकता है। सीरियसली वो प्रिंसिपल ने नहीं किया था, किसने किया था? टीचर्स ने। द प्रिंसिपल लाइक द आइडिया, गिव परमिशन टू द टीचर्स टू इंप्लीमेंट, और वहां ऐसा स्कूल था। लर्निंग होती है क्योंकि छोटे से स्कूल से मुझे मिल रही। इट इज अ मैटर टू गेट इंस्पायर्ड माय डियर फ्रेंड्स। जब उड़ीसा के इस गांव में एक छोटा सा स्कूल उतना सुंदर बना सकता है, क्या हम इस शहर में अपने स्कूल को इतना शानदार नहीं बना सकते? सेक्शन सी में क्या, वहां सारे बच्चे मार्शल आर्ट के थे, और मैं भी एक जमाने में कराटे किया करता था। सारे बच्चे हाउस की, मैंने भी हाउस किया, बाद में देखा थोड़ा सा बढ़ गया मेरा और बड़ा अच्छा लगा। सीरियसली ये छोटी छोटी चीजें स्कूल्स को शानदार बनाती है, स्कूल्स को एक यूनिक पोजीशन दिलाती है। और मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज मैंने विजिट किए हैं, फॉर्च्यून 2000 कंपनीज मैंने विजिट किए हैं, उनके बनाए हुए स्कूल्स उतने शानदार मैंने नहीं देखे तो उस गांव का एक छोटा सा हैच में वो स्कूल को शानदार देखे। I'm really impressed and throughout my life I would remain impressed। क्या हम अपने स्कूलों को वैसे बना सकते हैं? मैं तो अपने सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट किया कि उसी के तरह कुछ आइडियाज बना करके अपने क्लासरूम्स को बनाना है। अब जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी कुछ ऐसा करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं देखकर इम्प्रेस हो जाऊं और दूसरे लेक्चर्स में मैं कहूं कि जैक एंजल स्कूल, एंथम स्कूल में इतना इंप्रेसिव वे मुझे दिखा। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो चलिए बात करते हैं अज्यूम द बेस्ट इन योर स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स पे अज्यूम करिए वो बहुत बढ़िया है। अगर एक बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है तो ही और शी इज गुड इन सोशल साइंस। अगर सोशल साइंस में अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं तो म्यूजिक में अच्छा होगा, उसमें अच्छा नहीं है वो पेरेंट्स का बढ़िया केयर करने वाला होगा, उसमें नहीं है तो टीचर्स डे में सबसे ज्यादा बुके बनाने वाला वही होगा, उसमें भी नहीं है तो बिग टेक्स्ट मूव करने वाला होगा, उसमें नहीं है तो गार्ड भैया को सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करने वाला वो होगा। आप एक्सप्लोर तो करिए, बच्चे में अच्छाई आपको दिखेगी। मेरे स्कूल में एक छोटी सी बच्ची है स्वाति, मैं बहुत मानता हूँ उसको। वो जैसे इंटर करती गार्ड भैया को गुड मॉर्निंग भैया, सफाई कर्मी दीदी को गुड मॉर्निंग दीदी, वो सबको गुड मॉर्निंग बोलते हुए आते, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे याद है कि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में गार्ड भैया को, सफाई करने वाली दीदी को गुड मॉर्निंग नहीं बोला था। आज मुझे गिल्ट महसूस होता है, काश मेरे टीचर्स ने सिखाया था, मैं भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता। आई एम वेरी श्योर आप सब अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे। वेरी गुड। तो चलिए हम अपने बच्चों में बेस्ट एज्यूम करें। अगर बेस्ट एज्यूम करेंगे तब उनसे बेस्ट निकलता रहेगा। कई बार ये होता है कि हमारा परसेप्शन ही गलत होता है। मैं घर गया, मम्मी से पूछा मम्मी खाने में क्या बन रहा है, तो भिंडी बना। छी, भिंडी यक। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया भिंडी खराब होगी, जबकि उस दिन की भिंडी कुछ स्पेशल हो गई थी। दैट वाज यमी। लेकिन उतना मैं एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मेरा assumption पहले ही गलत।
कई बार हम ये अस्यूम करते हैं ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, ये बच्चा उतना अच्छा नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। सीरियसली आपने फील किया होगा, पर्टिकुलरली फीमेल्स, मुझे एक पर्टिकुलरली पार्टी में जाना है तो बढ़िया सा तैयार होकर जाना। मैंने पर्टिकुलरली फीमेल्स का क्योंकि हम तो जैसे चले जाते हैं बस खाने से मतलब। तो चलिए बात करते हैं, मुझे पार्टी में जाना, पर्टिकुलरली तैयार होकर जाना, ये ड्रेस मेरे पे सूट करेगा। अगर आपने सोच लिया सूट करेगा, सूट कर रहा है, अगर आपने सोच लिया ये ड्रेस नहीं तो बड़ा कॉमन सा ड्रेस है, कैसा लगेगा, तो उसे वाकई में कॉमन से लगेंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन योर असम्पशन। हम एज्यूम करें मेरे स्टूडेंट्स द बेस्ट है, सो इसलिए वो बेस्ट निकलेंगे, डिपेंड करता है आपके असम्पशन में। और भगवान के लिए असम्पशन में कोई कंजूसी नहीं है। नेक्स्ट, प्रेज व्हाट यू कैन। प्रेजेस पसंद किसे नहीं? Everyone likes praises. आपको जहां लगता है कि प्रेज करना चाहिए वहां प्रेज करिए, बट हियर अगेन यू हैव बैरियर्स। जितनी जरूरत है उतने। आपने देखा होगा सर ने आंसर दिया, मैम ने आंसर दिया, मैंने कहा लेट्स जॉइन हैंड्स फॉर, मैम ने अगेन आंसर दिया, सॉरी आई फॉरगेट नेम्स, प्रतिभा, हां थैंक यू। अब बोलने लगा हूं बुढ़ापा में, ठीक है। तो मैंने आपको क्लैप करने को कहा, अमित सर आई गॉट वेल टू डू दिख रहे हैं, हम सर की तारीफ करेंगे। अगर हम तारीफें नहीं करते तो हम ज्यादतियां करते, हम उनके साथ गलती करते हैं, मिसजज करते हैं। प्रेज करना जरूरी है, लेकिन ध्यान देंगे प्रेज की जरूरत हो तभी प्रेज करेंगे, अगर जरूरत ना हो, अगर हम प्रेज कर दिए तो हमारा प्रेज नेट वर्थ नहीं रहा उसका। आपने देखा होगा कई बार बच्चे डिजर्व करते हैं 60 मार्क्स, टीचर ने काट-कूट के नंबर दिया 59 मार्क्स, बच्चों मार्क्स को बड़ा कदर करता है। बच्चा 50 मार्क्स डिजर्व करता है, टीचर्स ने गलती से 90 मार्क्स दे दिए, पढ़ना छोड़ देता है। मानते हैं मेरी बात को? बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जहां प्रेज की जरूरत है वहां प्रेज करें, और प्रेज करने से ऑब्वियसली लोगों में नई ऊर्जा आती है, लोगों में नई एनर्जी आती है, लोगों में नई मोटिवेशन आती है, और सिर्फ प्रेजेस की वजह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। खुद को आइडेंटिफाई कर लीजिए आप क्या है। और एक कमी हम टीचर्स में अक्सर ये मिलता है कि मैं यहां जॉब कर रहा हूं, मुझे सैलरी इतनी मिलती है, मुझे रिस्पांसिबिलिटी इतनी मिलती है, मुझे ये फैसिलिटीज मिलती है। वो टीचर वहां जॉब कर रहा है, उसे सैलरी उतनी मिलती है, उसे रिस्पांसिबिलिटीज उतनी मिलती है, उसे ये इतनी मिलती है। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप हैं, वो वहां इसलिए क्योंकि वो है। शाहरुख खान कभी सलमान खान नहीं बन सकता, कंपैरिजन करते हैं। शाहरुख खान कभी सलमान खान नहीं बन सकता, गोविंदा कभी अक्षय कुमार नहीं बन सकता, उस्ताद मिल्खा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कभी मिल्खा सिंह नहीं बन सकता। ऑब्वियसली एहसान से जितने भी कोशिश करें मिल्खा सिंह नहीं बन सकता। We all are different. We have our own identity. Learn to choose what and when you are. आप प्यार करिए चॉइस करने में। आप जहां हैं ठीक जगह है, आपको जो मिल रहा है ठीक मिल रहा है, उम्मीद कर रहे हैं उम्मीद करिए। अपने आप से अगर आप प्रेम नहीं करेंगे तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ये कंपैरिजंस कभी नहीं, ये रिलेशंस कभी नहीं, प्रिजुडाइज कभी नहीं, नेगेटिव कभी नहीं। आप जहां हैं बहुत अच्छे हैं, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें। If I am a teacher of social science, let me teach social science in such a manner that no teacher in the entire world teaches social science in that manner. If I am a tabla player, let me play tabla in such a manner that no other tabla player plays tabla in that manner. और ये पॉसिबल है। आपने देखा होगा कई सारे कीपैड प्लेयर बस कीपैड बजा रहे हैं, चेहरा तो बिल्कुल ऐसा सूखा हुआ, उदास,
जिंदगी से परेशान, खुदकुशी का तरीका ढूंढ रहे हैं। और एक कीपैड प्लेयर वो कीपैड प्ले जब कर रहा है तो पब्लिक बाद में एंजॉय करती, पहले वो खुद एंजॉय करता, पूरा मस्ती में बजा रहा होता है। अब किसे पसंद करते बताइए? मैं एक टीचर हूं, मैं जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता हूं, अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, how would I transform energy in my learners? And how can I dare to teach energy to my learners? एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। और कब होगा? when you have passion। passion कब होगा? when you love your job, when you love your position। मेरी जॉब जो है, if I'm a PRT, I'm a PRT। if I'm getting this much, I'm getting this much। if I have this much responsibility, it's okay। let me prove myself। और हम बोल कर प्रूफ नहीं करेंगे, दिखा कर प्रूफ करेंगे। ये बल्ब नहीं बोलता मैं जल गया, मैं जल गया, मैं जल गया, कभी इसने कहा? इट्स साइंस बाय इटसेल्फ। हम मान लेते जल गया, तो मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं क्यों बोलूं मैं अच्छा टीचर हूं? लेट पीपल अज्यूम दैट हम गुड टीचर। सीरियसली जो अच्छा टीचर होगा वो दिखेगा, जो बल्ब जलता है वो जलेगा, बताने की जरूरत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव योरसेल्फ, क्योंकि आपसे अच्छे कोई नहीं, सीरियसली आपसे अच्छे कोई नहीं। जब भी मैं दूसरों को देखता हूं मुझे लगता है वो मुझसे अच्छा है, लेकिन आप खुद को देखो, यू विल फॉल इन लव विद योरसेल्फ। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आप एक अच्छी टीचर है, आप एक अच्छे लेसन डिलीवरी करने जा रहे हैं, आप अच्छे की लेसन डिलीवरी करें। तो भैया होमवर्क इज मेंट फॉर टीचर्स एज वेल। होमवर्क सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चों से पहले मैंने अभी भी कहा एज मेरा 40 इयर्स हो गया, 20 इयर्स बैक फील्ड में आज भी मैं डेली पढ़ता हूँ। कल क्लास 5 में मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, मैं पढ़कर जाता हूँ, बिना पढ़ाए हुए मैं पढ़ाता। तेंदुलकर इज द मास्टर ब्लास्टर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। किसी मैच में बिना प्रैक्टिस कर जाता है वो? धोनी took the highest number of catches behind the stumps। कभी बिना प्रैक्टिस कर जाता है वो? एपीजे अब्दुल कलाम जो लेसन उनको इम्पार्ट करना था, वो अगर टाइम नहीं मिलता तो रास्ते में पढ़ते हुए जाते। जब हम अच्छा सा पढ़कर रहेंगे ऑब्वियसली तभी तो अच्छा पढ़ा पाएंगे। दैट्स आवर होमवर्क। आप आइडेंटिफाई करिए खुद को, प्रिपेयर करिए खुद को, यकीन मानिए आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं। बिलीव मी, आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ सपनों में नहीं। यू हैव टू वर्क फॉर दैट, फॉर योर क्लास आइडेंटिटी। मेरे को याद है ना बचपन का वो टाइम जब मेरी मौसी आती थी मेरे घर, मामा मेरी सुबह सुबह जगा देती थी, उठो 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 उठो, घर साफ कर रहे हैं, सबको जिम्मा, अपने अपने रूम साफ करो, नए नए बेडशीट लगाओ, नए नए पर्दा लगाओ, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मैं वंडर करता था मामा अपनी ही बहन को शो ऑफ क्यों कर रही? मौसी मेरी वाली है, मेरी मामा की बहन है, वो उन्हीं को शो ऑफ करी। डेली हम पुराने बेडशीट में सोते हैं, आज नए बेडशीट में सो रहे हैं। डेली पुराने पुराने पर्दे लगाते हैं, नए पर्दे लगा रहे हैं। डेली बाल मेरे बिखरे हुए रहते हैं। आज मम्मा सुबह सुबह जाओ नहा करके आओ, बाल बढ़िया सपने से खुद से कंघी करके सॉफ्ट पकड़ना, मौसी को बोलना नमस्ते सलाम, सो ऑन। मामा कर क्या रही थी? एक अच्छी आइडेंटिटी प्रेजेंट कर रही थी। When there was a guest in my home, और ऑब्वियसली हम सब यही करते हैं। कल को घर में कोई मेहमान आता है, ऐसे नहीं करते हैं? जैसे ही क्लासरूम में हम आते हैं, we have to forge a class identity। सारे बच्चे जान रहे हैं कि टीचर एसएसटी टीचर, इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर डेली ऐसे ही पढ़ाते हैं। आप एक आइडेंटिटी बनाइए आज से। Listen my dear students, today we are going to study in a different note, बच्चे straight। वो भूल जाएंगे कल तक आप कैसे पढ़ाते थे। आज से आप क्या पढ़ा रहे हैं इस चीज को बच्चे ध्यान दें। Today the topic is this। ऑथोरिटी के साथ बोर्ड पे मेंशन करिए। कल बच्चों को ध्यान से नहीं देखते थे, आज से देखना शुरू कर दीजिए। जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप लेसन्स बताइए, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछिए। इवन इफ द चाइल्ड डजंट विश टू आंसर, आप आंसर निकलवाइए उनसे, गलत ही दो लिख दो। आप एक एग्जांपल सेटअप कर दीजिए चाइल्ड से।
You have changed yourself drastically. वो बच्चा घर जाकर बोलेगा मम्मा पापा लगता है सर के साथ कुछ हो गया है, मैम के साथ कुछ हो गया। आज यूनिक टाइप से पढ़ाए, बगल वाले स्कूल से ज्यादा अच्छा हमारे स्कूल में पढ़ाई हो। एंड वर्ड ऑफ माउथ काउंट्स। सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट यही है, वर्ड ऑफ माउथ। ये बच्चे जहां पर बोल दिए यू आर अ सेलिब्रेटेड स्टार। सो फॉर योर क्लास आइडेंटिटी, अपने क्लास की आइडेंटिटी आप प्रूव करिए। आप एक लोहार है, ये लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारना है। अब हथौड़ा मारना बच्चों की पिटाई नहीं करनी, एक नए तरीके से बच्चों को पढ़ाना, एक यूनिक वे से पढ़ाना। एंड माय डियर फ्रेंड्स, नेवर टू बी लेट। कल तक हमने जो तरीके से पढ़ाया, आज से हम नए तरीके से पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। एंड इट वुड वर्क वंडर, फ्रेशली इट वुड वर्क वंडर, काम करेगा ये। बच्चे बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, आपके साथ रहने वाले टीचर्स बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेगा। जब सब लोग आपकी तारीफ करेंगे ना, तो आपको लगेगा वाह बस स्टार जैसे क्राउन यार। वो फीलिंग यूनिक होती है, सेंस यूनिक होती है। नेक्स्ट, हैव अ प्लान। अक्सर लोग कहते हैं इफ यू हैव अ प्लान यू हैव सक्सेस, इफ यू डोंट हैव अ प्लान यू आर फार बिहाइंड सक्सेस। बिना प्लान के हम कुछ चलेंगे नहीं। और हर टीचर्स ने पेडागोजी में कंटीन्यूअस पढ़ा दैट वी शुड हैव अ प्लान एंड दैट प्लान इज कॉल्ड ऑल्सो से वेरी गुड लेसन प्लान। कंजूसी नहीं, दैट प्लान इज कॉल्ड लेसन प्लान। बिल्कुल। और लेसन प्लान हमारा तैयार कब होना चाहिए? क्लासेस से पहले, क्लासेस के बाद में। कुछ टीचर्स ओवर स्मार्ट होते हैं, क्लासेस करने के बाद लेसन प्लान बनाते हैं। जैसे एक स्कूल में गया, प्रिंसिपल ने कहा हमारे टीचर्स ना बदमाशी करते हैं, वो लेसन प्लान बाद में बनाते हैं, और जो बाद में बनाते हैं वो गलतियां छोड़ देते हैं। तो वी शुड हैव अ लेसन प्लान, और लेसन प्लान से चलेंगे तो ऑब्वियसली बढ़िया रहेगा। आप जोड़ करके ना कि आपकी क्लास में क्या क्या चीज हो, क्या क्या नयापन हो। और आज के बच्चे चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े, बायजूस में पढ़े, अनअकैडमी में पढ़े, वेदांता से पढ़े, ये सर से पढ़े, वो मैम से पढ़े, इस कोचिंग में पढ़े, उस कोचिंग में पढ़े, अगर आप उसको डिफरेंट देते हैं यू आर अ स्टार। अगर आप डिफरेंट नहीं दे पाते हैं, कंपटीशन देने वाले बहुत लोग हैं, फिटजी है, आकाश है, ये है, वो है, वो है, और यकीन मानिए वो सब टीचर्स हैं, वो भी वही जानते हैं जो आप जानते हैं, वो भी वही पढ़ाते हैं जो आप पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, आपकी एनर्जी कम होती है, इसलिए डिफरेंस। आप एनर्जी बढ़ा दीजिए, आप उनसे ऊपर। एंड एट लास्ट डू स्वेट द स्मॉल स्टफ। हर छोटी छोटी चीजों के लिए पसीना बहाएं। जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे उतना ज्यादा निखार आएगा। जितनी छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देंगे वो छोटी छोटी बातें हमें महान बनाएगा। एक बच्चे ने होमवर्क नहीं बनाया, मैंने पूछा आपने होमवर्क क्यों नहीं बनाया? सर मम्मा बहुत बीमार थी, मुझे घर का खाना बनाना पड़ा। क्लास 5 का स्टूडेंट बता रहा, मुझे एम्पैथी फील हुआ। ओके बेटा, नो इशू। अगर बच्चे को घर सीधे जाने दे दिया, बच्चा कल भी होमवर्क नहीं बनाएगा। नो इशू बेटा, बी सीटेड हियर आफ्टर द क्लासेस and since you have got the homework you have got to complete it। तो पूरा होमवर्क मत बनाओ, तो 25% बनाओ, लेकिन बनाकर जाना है। आज अगर आप 25% उससे बनवा लेते हैं, कल वो 100% बनाकर आएगा। इवन मामा पापा दोनों बीमार होंगे, दोनों के लिए खाना बनाएगा, तब भी मानते हैं इस बात को। अगर आप अटेंडेंस ले रहे हैं रोल नंबर 51 प्रेजेंट सर, अगर आप चाहते हैं प्रेजेंट सर वो बोलेगा repeated present sir, again repeated present sir, again repeated present sir। पक्का ठीक बोलेगा। एक बार रिपीट तो करिए। और बच्चे एम्बैरेस ज्यादा फील होते हैं अपने कलीग्स के लिए, मानते हैं? रिपीटेशन करवाइएगा, वो बिल्कुल प्रेजेंट सर बोलेगा। ये डिपेंड टीचर्स पे पड़ता है। हर एक चीज पे मेहनत करें, स्वेट करें। जितनी ज्यादा तकलीफें आप करेंगे उतने बढ़िया टीचर्स आप बनेंगे। मेरे स्कूल में टीचर है, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो बच्चों के कवर्स चेक करते हैं। लेट मी सी योर कवर। मैं बड़ा प्यार करता हूं उनको। हर बच्चों के कवर्स चेक करते हैं, और जब कवर्स चेक करते हैं ना, वो सारे बच्चे कॉपीज को वेल टू डू मेंटेन रखते हैं। पूरे स्कूल में बच्चे उतने बढ़िया कॉपी मेंटेन नहीं करते जितने पर्टिकुलर टीचर के क्लास में कॉपी मेंटेन करते हैं।
और इस बार अप्रेजल में मैं उनका 4,500 रुपए बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इतनी चीजों के लिए। वो कॉपी मेंटेन करवाते हैं, मामूली सी चीज, लेकिन ये मेरे स्कूल को महान बना रहा है। वो ये टीचर ने इनिशिएटिव लिया, और ये इनिशिएटिव आज से नहीं, पिछले 1.5 सालों से ये काम कर रहे हैं। और चूंकि 1.5 सालों से कर रहे हैं, उनको 1.5 साल पहले ये रिवार्ड मिल रहा था, जो नहीं मिला, आज ये रिवार्ड मिल रहा है। इनको 4,500 रुपए पर महीना सैलरी इंक्रीमेंट मिल रही है, बढ़िया बात है। तो ऑब्वियसली हमें रिवार्ड्स मिलता है। आज मेरे कल मैंने बताया ना, मैं पिछले 19 साल 5 महीने से इस फील्ड में हूँ। मोर देन 10 to 11 years रिसोर्स पर्सन हूँ। ये आप लोगों को पता कब चला? रिवार्ड्स मिलने हैं आपको, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, अच्छा करेंगे, रिवार्ड्स मिलेंगे तो मिलेंगे। तो हम छोटी छोटी बातों के लिए स्वेट करें, और हम एक बात प्रॉमिस कर लें, मैं अपने क्लास का मालिक हूँ, मैं अपने क्लास को बढ़िया से लीड करूंगा, मैं क्लास की सारी समस्याओं को सॉल्व करूंगा, मैं ये ध्यान दूंगा द पर्पस ऑफ ईच चाइल्ड इज सर्व्ड इन द क्लासरूम। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास की पूरी जिम्मेदारी मेरे पे, ना वाइस प्रिंसिपल को, ना इंचार्ज को, ना प्रिंसिपल को जरा भी तकलीफ लेना पड़े। आई एम द बेस्ट टीचर। और जो नहीं कर पाए, यकीन मानिए, यू कांट एवर ड्रीम टू बी द बेस्ट टीचर। आप कहीं भी रहिए, you can't ever dream to be the best teacher. So we have to set the standard, और ये हमने सेंटर स्टेज में दिया है सबके। 7 tips of classroom management में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। Next slide please. Authority, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं कि आपको जब अथॉरिटी मिली है, आपको पावर मिला है ओवर 40 कैंडिडेट्स, और जब आप 40 कैंडिडेट्स को आप डील कर रहे हैं, अगर मैं प्रिंसिपल भी स्कूल का हूं, मुझे अंदर आना होगा टू सीक योर परमिशन, मैं आई कम इन सर, मैं कम इन मैम। अगर आपने यस बोला तभी मैं आ सकता हूं, नो बोला तो मैं अंदर भी नहीं आ सकता। तो आपको 40 कैंडिडेट्स को अथॉरिटी मिला है, पर्टिकुलर पावर मिला है। तो पावर को यूज करना, मिसयूज करना, फॉरगो करना आपके। आपने कई बार देखा होगा, जो चेयर होता है ना, वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। चेयर पे जो पर्सनालिटी बैठते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ एसपी वैसे होते हैं, आप कहते हैं बहुत बढ़िया एसपी था, ये तो काम का एसपी नहीं। कुछ डीसी बहुत बढ़िया डीसी है, ये काम का डीसी नहीं। कुछ पीएम के पूरी कंट्री फैन होता है, कुछ पीएम को कोई देखना नहीं चाहता। द चेयर इज इम्पोर्टेंट, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट इज पर्सनालिटी। तो आपको जब अथॉरिटी मिला है, तो आपको अथॉरिटी को सर्व करना, बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर, देन बीइंग अ क्लास टीचर, देन बीइंग सुपरवाइजरी इंचार्ज, देन बीइंग वाइस प्रिंसिपल, एंड thereafter बीइंग प्रिंसिपल। आपकी अथॉरिटी में इंपॉर्टेंट 6 सब टॉपिक्स हैं जो की कंसर्न्स है। चलिए एक एक बात करते हैं। देयर शुड बी रूल्स। जैसे ही आपकी क्लास में मैंने इंटर किया, मैंने रूल बना दिया कि अगर मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा तो आपको, अब मैंने रूल बना दिया, सबने रूल फॉलो किया। रूल्स हैव टू बी मेड। कल तक रूल्स नहीं बना था, कोई बात नहीं, आज से बनेगा। And there should be classroom rules. और क्लासरूम रूल्स कैसे बन सकता है? आप चाहो तो क्लास में आज बता दो क्लासरूम रूल्स, नोट इट डाउन एवरीवन। सबसे आसान तरीका है क्लासरूम रूल्स लिख करके टांग दो कि जब मैं क्लासरूम में हूं तो ये रूल्स चलेगा। और ये पॉसिबल है कि इंग्लिश टीचर का क्लासरूम रूल्स हिंदी टीचर से अलग हो सकता है, हिंदी टीचर का आर्ट टीचर से अलग हो सकता है, सोशल साइंस टीचर का साइंस टीचर से अलग हो सकता है। पॉसिबिलिटी है। देयर शुड बी क्लासरूम रूल्स। वो क्लासरूम रूल्स को सिर्फ बच्चे नहीं, टीचर्स भी फॉलो करें। अब चलिए क्लासरूम रूल्स क्या क्या हो। We'll have to sit straight. Those are the classroom rules. If you have a query, you have to raise hand and not to utter a word. ये नहीं कि हाथ उठाए सर मैम नहीं। अगर हाथ उठाना तो इतना उठाना, इतना ये डिसाइड अप करिए। अरे एक वर्ड नहीं बोलना unless you ask to speak. उसके बाद आपने रूल्स बनाया कि the class will conclude from this time to this time.
किसी को पानी पीना तो ऐसे पीना, किसी को वॉशरूम जाना तो ऐसे जाना. If you have got to bring your books, bring your books. If you have got to bring your notebook, bring your notebooks. If you want your students to write in blue pen or black pen, you have to make rules. There has to be rules. और ये रूल्स होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. और जो टीचर अपने क्लासरूम में रूल्स नहीं बनाता है, he or she invites negative impact on his or her classes. और ये कभी बोल का बच्चा का नहीं, आप क्लास में नहीं मालूम, क्लास में कैसे आते हैं सीरियसली नहीं मालूम. आप रूल्स तो बनाओ. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको मालूम है. They have to penalize. This is one of the most good things that all the teachers like. Maybe कोई गलती करा पनिशमेंट देना बच्चों को. ऑब्वियसली सीबीएसई ने हमें हाथ बांध रखे हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स ने हाथ बांध रखे हैं कि हम बच्चों को फिजिकली पनिशमेंट नहीं दे सकते, मेंटली पनिशमेंट नहीं दे सकते. बट वी हैव टू जस्ट वी कैन रिवाइज आवर ओन लिस्ट. एक बच्चा है ध्यान से मेरी क्लास में नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, यू हैव टू राइट दिस एसे 5 टाइम्स इन द क्लास. कोई मना नहीं कर रहा, आप 5 टाइम्स ऐसे लिखवाइए. और हर बार ऐसे पहले ऐसे से डिफरेंट होना चाहिए. दोबारा बदमाशी करें बच्चे. बच्चा नहीं लिख पा रहे, मैम कोई बात नहीं, एबीसीडी पे लिखा 100 टाइम्स. बदमाशी करेगा बच्चा? नहीं करेगा. देयर हैज टू बी अ पेनल्टी फॉर ईच ऑफ द रॉन्ग टर्न्स बाय द कैंडिडेट्स. अगर पेनल्टी है, वो गलतियां नहीं करेगा, पेनल्टी नहीं तो कल को गलती पक्का करेगा. आज इसने हाथ से टैप किया, फिर टांग से टैप करेगा, परसों दीवार पे सर दे मारेगा, उसके बाद सामने वाले के सर पे पैसा घड़म. देखा ना किस तरह से वीडियो में दिखाया बच्चों ने बदमाशी किया. देयर हैज टू बी पेनल्टीज. वो पेनल्टी सॉफ्ट हो. ध्यान हमको ये भी रखना है, हमें बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है, और साथ साथ बच्चों को तरीका भी सिखाना. देन आफ्टर वी हैव वॉच योर बॉडी लैंग्वेज. अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक स्कूल गया था, उसके प्रिंसिपल मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है. मैं मिलने गया, एक टीचर दीवार पे आराम से यूं टांग रख कर खड़े पढ़ा रहे. भाई प्रिंसिपल का तो दूसरा प्रिंसिपल ही समझ सकता है. व्हाइट वॉशेस कितना महंगा हो गया लॉकडाउन में पर्टिकुलरली. जय बोला भाई साहब आपको कलर पसंद नहीं था दीवार का? नो 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 सर. शाहरुख खान समझते हैं अपने को? नो 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 सर. सलमान खान? नो सर. अक्षय कुमार? नो सर. व्हाट वाज द हेल देन दैट? दीवार पे जूता रख दो. अगर आप दीवार पे जूता रखेंगे, कोई बच्चा अगर टांग डेस्क पे रख दिया तो नहीं रखेगा सर. नहीं नहीं, कोई बच्चा आपकी तरह बदतमीज हो सकता है. He realized what he was doing. Not only the words of a teacher speak, the gesture and posture of the teachers do well speak. हमारा जेस्चर, हमारा पोस्चर खूब बोलता है क्लास में. आप ध्यान देंगे, एक क्लास में बच्चों का एक टीचर के लिए रिएक्शन दूसरा, दूसरे टीचर के लिए रिएक्शन दूसरा, तीसरे टीचर के लिए रिएक्शन तीसरा. ऐसा क्यों? ये हमने डिसाइड करवाया. एक टीचर क्लास में बच्चों ने गुड मॉर्निंग बच्चे भी हम भी पढ़ेंगे सर. बच्चे गलत नहीं, गलत कौन है? पर्सन दैट कैन यू डू दैट बिफोर योर प्रिंसिपल? बाप रे नहीं. तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट्स योर बॉडी लैंग्वेज? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप ध्यान दें, बच्चे उसको फॉलो करेंगे. अगर आप पढ़ाते पढ़ाते इफ यू मूव योर फेस लाइक दिस इन द क्लासरूम, एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम स्टूडेंट्स एज वेल. और टीचर्स बॉडी लैंग्वेज के यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा जब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे हाथ बोलते हैं, आईब्रोज बोलते हैं, ये चीज मूवमेंट करते हैं. सो जब ये चीजें मूव करता है, ये इम्प्लाई करता है कि व्हाटएवर आई एम टीचिंग आई एम फीलिंग दैट. और जब आप फील करते हैं तो लोगों को मजा आता है. देखते हैं शाहरुख खान जब गाना गाता है तो गाना कोई और गा रहा है, शाहरुख से रिएक्ट कर रहा है, ये यहाँ का रस की जगह दिखाता है. इतना मैनिपुलेटिव दिखते मूवीज आप लोग. चलिए, अक्षय कुमार जब जबरदस्त एक डायलॉग बोलता है तो उसके आप देखेंगे ये गर्दन के दोनों सारे रस खिंचा गए ऐसे. कैटरीना जब बढ़िया सा इमोशनल डायलॉग बोलती है तो उसकी यहाँ पे फूलता है, यहाँ पे गड्ढा. तो ध्यान से देखा ऐसे देखा. जो टीचर ड्रामा के होंगे वो जानते होंगे जो बातें मैं कह रहा हूँ उसकी कुछ मीनिंग है. ये सिर्फ आर्टिस्ट लोग समझ सकते हैं. और गलती से एक टाइम में मैं भी आर्टिस्ट.
चेंज ऑफ फिलहाल बात करते हैं तो वो सारी चीजें जब होता है ना तो लोग उसको पसंद करते हैं, इवन आपके बच्चे पसंद करेंगे। अगर कोई बात खुश होने की तो ये शुड स्माइल ऑन योर फेस। अगर स्माइल नहीं आता तो बच्चे बिलीव नहीं करते। अगर कोई तकलीफ है तो दिखना चाहिए। इवन कोई टीचर जो बार बार नाक पे नीचे फिंगर रगड़ते हैं, बच्चे बड़ा प्यारी बात करते हैं, बच्चे कॉपी भी करते हैं। मुझे याद है मेरी तंत्रा मैम थी जो गुड मॉर्निंग बोलकर हल्का सा सर डाउन करते थे, जैसे मैं बोलता था गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा लगता। तो हमारा जेस्चर हमारा पोस्चर बोलता है, और यही रीजन है बच्चों के फेवरेट टीचर्स होते हैं। जितना बढ़िया आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतने बढ़िया रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी। लगातार कोई चीज होते रहना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैंने आज अच्छा पढ़ाया तो कल आज से अच्छा पढ़ाना, परसों कल से भी अच्छा पढ़ाना। ये नहीं कल अच्छा पढ़ाया कल जैसे सच पढ़ा के निकल जाएंगे। देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी। If I want my students to be present in the classroom most of the time, I should also be present in my duty most of the time. अगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे इंग्लिश में, मैथ में, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, म्यूजिक में, सब में अच्छे रहे, मुझे भी 2-4 फील्ड्स में अच्छे होना दिखाना पड़ेगा। There has to be consistency in this. The next, be firm but fair. यकीन मानिए कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत प्यारे बन करेंगे तो अच्छे होंगे, थोड़ा जोर से भी सोचते हैं। अगर सोचते हैं कि हम अगर प्यारे बन करेंगे तो अच्छे होंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स के फेवरेट वो टीचर्स होते हैं जो थोड़े फर्म कड़क होते हैं। मानते हैं आप लोग? मुझे याद है मेरी फेवरेट टीचर मिसेस नमिता सिन्हा, वो टीचर है जिससे मेरे को थप्पड़ मारा था यहाँ क्लास 10th। When I was a karate black belt champion, ये मेरी फेवरेट। Seriously, हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है so that the classroom procedures go in a nice way. At the same time, fair भी होना है। दो बच्चे बात कर रहे हैं तो दोनों के एक साथ ही डांटना है। इन्होंने बात की, उन्होंने सुना, इनको ज्यादा डांटना, उनको we have to be fair as well as firm. फर्म होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं ये बच्चे जनरली टीनेज में होते हैं, इस टाइम थोड़ी बड़ी बदमाशियां करते हैं। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो बदमाशियां बढ़ जाती है। इवन द बेस्ट स्कूल, जो बढ़िया स्कूल होते हैं, वहां भी बदमाशियां होती है। We have to be firm as well as fair. अगर फर्म होते हैं तो डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड, लेकिन फेयर होना बहुत जरूरी है। बिना गलती के किसी को डांटना हमें नहीं। मूव अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक टीचर को क्या करना है, क्लासेस पे मूव करना। अगर मैं यहां से खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, कोई टीचर यहीं पे कंसंट्रेट कर रहा है, सब लोगों को आपको देखना। हो सकता है वो कोने में बैठा हुआ बच्चा पढ़ रहा है, अब वहां जाकर के देखो, अब वहां जाकर देखो। जितना ज्यादा आप मूवमेंट करोगे क्लास में उतना अच्छा रहेगा। कि ये मतलब नहीं है कि क्लास में आए यहाँ से वहां छू 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 वहां को या छू 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 स्टेशन आ गया, और यहाँ का पर्पस वो ट्रेन नहीं बनना। जब गॉट अ पर्पस ऑफ लेसन्स डिलीवर करो, करते हुए हल्का सा 2 कदम मूवमेंट इधर कर लो, बच्चों को मालूम होना चाहिए दैट टीचर इज वाचिंग यू। काफी इतना 2 कदम मूवमेंट वहां पे करो, बच्चों को मालूम होना चाहिए दैट टीचर इज वाचिंग यू। कई बार जब इस तरह के वर्कशॉप्स होते हैं, मेरे क्लासेस में 300-200 टीचर्स बैठे होते हैं, और जब बच्चे इतने बदमाशी कर सकते हैं तो टीचर भी तो हिलने नहीं देता हूं मैं किसी को। कोई जहां हाथ इधर लाया, अच्छा सर, ओके सर, ठीक नहीं ठीक, जहां कोई मैम हल्का सा बरकर, अच्छा गुड नाइस, आप चाहोगे तो कोई करेंगे, चाहोगे तो नहीं। मूव अराउंड ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितना मूव करोगे क्लासेस उतनी वेल मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नॉलेज। As teachers, we transfer knowledge, and in our account we have abundant knowledge. अब हमारे पास जो नॉलेज है हम बच्चों को इम्पार्ट कर रहे हैं। अब चलिए नॉलेज के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मैंने पहले कहा था कि मैं ये कंप्लीट स्लाइड्स आपको दे दे रहा हूँ, नो नीड टू राइट। अरबा सर, ये जिम्मेदारी आपकी है, सारे टीचर्स को स्लाइड्स दे देंगे।
ठीक है। नॉलेज हमारी कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स शुड बी मीनिंगफुल। जो भी फैक्ट मैं दे रहा हूं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम बुक्स दैट आई हैव नॉट रिटन। It should be from books prescribed by CBSE. It should be from such platforms that can be trustworthy. Knowledge हमारा meaningful होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते भूत के बारे में पढ़ाना शुरू करें। Our knowledge should be meaningful. The next is knowledge acquisition can be incidental. कई बार हम ये फील करते हैं कि जो नॉलेज हम डिलीवर कर रहे हैं उसको रिलेट और को रिलेट करते हैं फ्रॉम मेनी लिविंग एग्जांपल्स। और जितना ज्यादा हम रिलेट करते हैं नॉलेज हमारी उतनी अच्छी होती है, उतनी इजीली लोग ग्रास्प करते हैं। तो हमारी जो नॉलेज है इट शुड बी सपोर्टेड विद सर्टेन एग्जांपल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट, नॉट ऑल नॉलेज नीड्स टू बी डिटेल्ड। मैंने जितनी बातें आपको बताया इस 2 घंटे के वर्कशॉप में, यकीन मानिए 2 महीने का रिसर्च वर्क आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। मैंने लंबे आंसर्स लिखा है, कभी बड़े बड़े पैराग्राफ्स की नोट्स दे दिए। बस आपकी नॉलेज ट्रांसफर ऐसे ही होनी चाहिए, छोटे छोटे की नोट्स पे, ताकि बच्चों को वो की नोट्स याद रहे और की नोट से पूरा लेसन उसके दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट, नॉलेज लर्निंग शुड स्टार्ट अर्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे टीचर्स ध्यान देंगे। एज सून एज एंटर द क्लास, गुड मॉर्निंग टीचर, मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस। स्टार्ट कर दिया, अब वहां पढ़ाई शुरू हो जाती है। अगर आप लेट करते हो तो बच्चों को इनवाइट करते हो क्लास में, स्टूडेंट से टीचर से लर्निंग शुरू होनी चाहिए। अगर आप लेट करते हो पढ़ाने में तो बच्चे आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। इट शुड स्टार्ट अर्ली। आपने देखा था उस वीडियो में टीचर वेट कर रहे थे। अगर वेट नहीं करके पढ़ाना शुरू करती, जो मैथ सेंटर ले जाने की बात कर रहे थे, मैथ्स एक्टिविटी करने की बात कर रहे थे, अगर वो कर देती तो पढ़ाई पहले शुरू। नेक्स्ट लेक्चर, नॉलेज बिल्डिंग। आप जो नॉलेज इंपार्ट करेंगे क्लासरूम्स में, उस नॉलेज के लिए आपको नॉलेज बिल्डिंग करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया, आपके पास रेफरेंस बुक्स कौन होगा? दोस्त गाइडेड बाय सीबीएसई। आपके पास अदर प्लेटफॉर्म्स कौन से होंगे? दोस्त दैट आर ट्रस्टेड। तो नॉलेज बिल्डिंग के पास, नॉलेज बिल्डिंग को शॉर्ट में केबी कहते हैं। नॉलेज बिल्डिंग के लिए 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। नंबर 1, KB involves creating sustained work with ideas. Definitions एक ही जो सारे टीचर्स को पढ़ाना, पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट। That has to be creative. वही छोला मार्केट में खाते, वही छोला हम घर पे खाते, वही छोला अपने फ्रेंड के यहाँ खाते, वही छोला फूफी के यहाँ खाते हैं। वही सबसे अच्छा छोला कौन लगता है? मार्केट वाला। मानते हैं? It is creative. वहां क्रिएटिविटी होती है। तो हमारी नॉलेज में भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सस्टेन होना चाहिए और अपने आइडियाज होने चाहिए। अब ध्यान देंगे मेरी बात पे, अगर हम एल्बर्ट आइंस्टीन के आइडियाज शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए। न्यूटन के आइडियाज शेयर कर रहे हैं, कुछ कमी रह जाए। मोदी जी के आइडियाज शेयर कर रहे हैं, कुछ कमी रह जाए। लेकिन अगर एहसान अपना आइडियाज शेयर कर रहा है तो क्या 100% करेगा? आइडियाज शुड बी खास। The next, KB focuses on knowledge that lives in the world can be modified and extended by others. Knowledge building इस बात को फील करता है कि आज दुनिया में जो लाइफ है उस लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। ऑब्वियसली कल तक मैं किसी को बोलता था गुड मॉर्निंग, मेरे फ्रेंड ने सिखाया वाह मॉर्निंग बोलो, मेरी नॉलेज इंक्रीज कर गई। किसी ने कहा ब्यूटीफुल मॉर्निंग बोलो, नॉलेज और इंक्रीज कर गई। किसी ने कहा स्प्लेंडेड मॉर्निंग टू यू बोलो, नॉलेज इंक्रीज कर गई। हम ये जानते हैं कि नॉलेज के ट्रांसफर से हम दूसरों की जिंदगियां संवार सकते हैं। मानते हैं बात? Obviously, we as teachers can do this. KB calls for community disclosure to advance knowledge और shared problems of understanding. Knowledge building ये कहता है कि अगर हमारा shared problems है तो हम knowledge transfer से उस problem को solution कर सकते हैं। For example, तौकीर सर एक प्रॉब्लम है कि इनको अक्सर हिचकी आती है। मेरे को भी एक प्रॉब्लम है, मेरे को अक्सर हिचकी आती है। सर कहते हैं जब मैं पानी पीता हूँ मेरी हिचकी चली जाती है। मैं भी पानी पीता हूँ, मेरी हिचकी नहीं गई, बट आई लर्न एन आइडिया, कुछ पीने से हिचकी चली जाती है। कल मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, मुझे पता चलेगा कॉफी पीने से मेरी हिचकी चली गई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉलेज बिल्डिंग ये सिखाता है कि हम एडवांस नॉलेज से हम अपने आइडियाज, अपने वेज खुद डिवाइस कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना काल जब चल रहा था, सर्दी खांसी लोगों को हो रही थी, और सर्दी खांसी में कुछ समझदार लोगों ने क्या किया कि बचना है दवाइयां ले ली। कुछ और समझदार लोगों ने क्या किया, तुलसी के पत्ते लेने लगे, कुछ अदरक लेने लगे, कुछ वो क्या करते हैं दालचीनी, काढ़ा स्वाद लेने लगे। अब मैंने एक नया चीज सीखा जिंदगी में, मुझे सूप कभी पसंद नहीं था। मैंने तय किया मैं सूप पीना शुरू कर दूंगा, and I started liking soups। कभी जिंदगी में मेरे को सूप पसंद नहीं था, और सूप में सारी चीज पीने लगा, एंड थ्रू आउट आपको देख सकते हैं इस कोरोना काल में बच के निकल गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस कोरोना काल ने हमें बहुत सारा कुछ सिखाया है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये ऑनलाइन एजुकेशन देना जानते नहीं थे, सीरियसली बिलीव मैं नहीं जानता था, नहीं जानते थे, लेकिन ये कोरोना काल में सिखा दिया ऑनलाइन एजुकेशन कैसे देना है। जूम से शुरू किए, गूगल मीट पे दे, अब टीचर्स के पास वंडरफुल आइडियाज है। तो नॉलेज बिल्डिंग कहते हैं कि हम आइडिया शेयर करते हैं, नए डिवाइस करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंडिविजुअलाइजेशन, मैंने कहा था ना कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। You are can you put your hand on the task of the person? हाँ नो सुनो प्लीज मैम, प्लीज कोई और कभी भी संकोच मत करिए। हाँ बिल्कुल। ओके थैंक यू मैम। तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे थे इंडिविजुअलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 40 स्टूडेंट्स को केटर करना हो सकता है पूरे क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट मेरे जैसा हो जो बहुत कमजोर हो, अब टीचर ने 40 मिनट्स क्लास में स्पेंड कर दिया, लगा कि इस बंदे को और टाइम देना जरूरी है। टीचर क्या करेंगे, स्टाफ रूम में स्कूल आवर्स के बाद फ्री टाइम में उस बच्चे को इंडिविजुअली समझाए। और कई बार ऐसा होता है, कई सारे स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स ऐसे होते हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, दे कम आउट टू बी द बेस्ट स्टूडेंट्स। एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी लोगों को अगर इनके टीचर्स ने स्पेशल अटेंशन नहीं दिया होता, ये आम लोग भी नहीं रहते। तो वैसे बच्चे जिनके स्पेशल नीड्स है, इंडिविजुअल नीड्स है, उनको एक खास ध्यान दिया जाए। मेरे एक स्टूडेंट है आदित्य, बेचारा पैरों से अपाहिज है, दोनों पैर से नहीं, वो हाथ से चलता है। कई बार मैंने उसको स्ट्रगल करते हुए देखा, तो पर्टिकुलरली रिलेशन बन जाता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम देकर टीचर से पढ़वाया। आज उसके बैच में जितने बच्चों ने तरक्की किया, सबसे ज्यादा तरक्की उसने की। जो भी विद स्पेशल नीड्स होते हैं वो ज्यादा तरक्की करते हैं इफ यू गिव देम सम स्पेशल आवर्स। तो इंडिविजुअलाइजेशन आप अगर टाइम देंगे वहां, तो आप देखते हैं अंडरलाइन किया हुआ इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन strategy refers to those classroom practices of teaching which recognize the uniqueness of each student learner। ये recognize करता है uniqueness of learning, और obviously अगर आप recognize करिए, आप टीचर आप एड्रेस कर देंगे उसके स्पेशल नीड्स को, and he would be the APJ Abdul Kalam of tomorrow, he would be the Mahendra Singh Dhoni of tomorrow, he would be the Milkha Singh of tomorrow। अब कौन जानता है कौन क्या करेगा। डॉक्टर कुमार विश्वास, he was studying in IIT दिल्ली, क्योंकि मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़ दिया, आज वर्ल्ड का नंबर 1 क्वेट्स की गिनती में आता है। सुना होगा उसका पोएम जो दीवाना करता है, कुमार विश्वास, he was also a special student। तो अगर हम उनकी इंडिविजुअल नीड्स को देख लेंगे, तो ऑब्वियसली बैक बेंचर्स ही तहलका मचाते हैं, फ्रंट बेंचर्स तो खो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइम मैनेजमेंट, हम टीचर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। वी हैव टू मैनेज आवर टाइम, और हमें टाइम मैनेज क्लासरूम में कैसे होना चाहिए, इन 5 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स पे। नंबर 1, पैरिंग डाउन पेपर वर्क। आपने बीएड में पढ़ा होगा पेडागोजी में, पर्टिकुलरली जितना ज्यादा कोई टीचर टीचिंग एड यूज करता है वो उतना बढ़िया टीचर होता है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ऑब्वियसली सबसे इजी आपका अप्रोचेबल आपका
टीचिंग एड आपका पेपर्स हो सकता है, और जनरल पेपर्स ना हो करके वो पेपर्स वैसा भी इधर से कट किए हुआ उसमें कुछ डिजाइन बना हुआ वो बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सो पैरिंग डाउन विद पेपर वर्क, टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि पेपर वर्क पे बहुत ज्यादा आपका टाइम जाए नहीं। मैंने देखा कुछ टीचर 25 पेज लेकर आए, पढ़ाना एक ही पढ़ना, क्लास पे ढूंढने लगे पेपर कहाँ एंड ही लॉस्ट 7 इंपॉर्टेंट मिनट्स इन दैट। नुकसान हो गया, एक टीचर का नहीं 40 स्टूडेंट्स का नुकसान हो गया। जानने के बाद प्लान आपको कर रहे हैं, आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब एड्रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कब होने चाहिए। थर्ड, एस्टैब्लिशिंग रूटीन। आप रूटीन बना कर रखिए, रूटीन में एक क्लास आज है इंग्लिश का, इंग्लिश पे भी रूटीन बना करके आज ग्रामर पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है। दिस रियली हेल्प्स इन मैनेजिंग आवर टाइम। नेक्स्ट, असाइनमेंट्स। आपको असाइनमेंट्स कब देखना है, या तो क्लास असाइनमेंट को या तो होम असाइनमेंट, क्लास के स्टार्टिंग में या क्लास के एंड में। बेहतर ये होगा व्हेन यू आर अबाउट टू लीव द क्लास, करेक्ट योर असाइनमेंट्स, सेट द स्टाफ रूम, टाइम आपका बच जाएगा। लास्टली, सीट वर्क। A teacher is supposed to lay more emphasis on seat work. एक बच्चा डेली जो लास्ट बेंच पे बैठता है उसका सीट चेंज करके मिड में आप ले आए, उसका सीट चेंज करके सामने ले आए, बच्चे में आपको परिवर्तन देखेंगे। एक बच्चा जो फर्स्ट बेंच पे बैठता है उससे कभी लास्ट बेंच नहीं बैठे, और ये सीट वर्क सब बच्चों का चेंज करना जरूरी है। एक बच्चे को यहाँ सुनाए वहां डालिए, आज कल एक बच्चे को वहां सुनाए यहाँ डालिए, बच्चे ये जाने कि माय सीट कुड बी चेंज। और सीरियसली बहुत बड़ा असर पड़ता है इस चीज पे। मैंने एक बुरा क्लास देखा, आप एक अच्छा क्लास देखा। चलिए इफेक्टिव क्लास ऑफ एबिलिटी देखते हैं। स्टार्टिंग जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव क्लास। So yesterday we learned about pushes and pulls. Think to yourself, what is a push? Turn and talk to your neighbor. How would you define a push? Three, two, one. Raise your hand if you want to describe the definition of a push. Hi. You're moving something away from you. Think to yourself, how is a pull? How could you define pull? Turn and talk to your neighbor. Three, two, one. Raise your hand if you can describe the definition of a pull. Isaac? Pulling it towards you. Everyone do that. Pulling it towards you. Now, I would love to see what rows are right. I'm going to call you by rows, and you're going to go back to your desk and grab a slate, a marker, and an eraser. A what? Slate, marker, and eraser. Come back to the marker, please.
Okay, we'll come back again. आपने बहुत इंपॉर्टेंटली ये वीडियो देखा. आई एम वेरी श्योर जो हम जब वीडियो फाइल यस ओके तो सॉरी आपने जब देखा ये वीडियो में आई एम वेरी श्योर बहुत लोग कोरिलेट कर रहे हैं पहले वीडियो को इस वीडियो को. सीरियसली दोनों में रिलेशन था. आपने देखा सी वाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड. बता दीजिए कैसे. Stop. She was one of the best teachers in the world. बस इसके पहले stop कर दीजिए. हाँ. She was one of the best teachers in the world. क्यों she was the best teachers in the world? इसने पहला वीडियो देखा वहाँ कमी क्या क्या था. जो एक्टिविटीज बच्चे वहाँ क्लास में करते थे वही सारे एक्टिविटीज बच्चों को कराया. But she guided each and every activity. क्लास डिस्टर्ब नहीं हुआ भाई बिकॉज़ द टीचर वाज अ गाइड देयर. सी गाइडेड ईच एंड एवरी एक्टिविटी और टीचर के कहने के अनुसार सारा काम हो रहा था. आपने देखा बच्चे बैठे हुए थे. व्हेन सी सेड रो 4 शुड कम फॉरवर्ड, रो 4 से सामने आया. रो 3 शुड कम फॉरवर्ड, सामने आया. रो 1 शुड कम फॉरवर्ड, सामने आया. बच्चे आके बैठ गए. उन्होंने बच्चों को कहा हाफ क्लास डिस्कशन. बच्चों को बात करवाया क्लास में लेकिन एक टाइम लिमिट दिया. हाफ डिस्कशन टिल द टाइम आई मेक यू स्टॉप. 4 3 2 1 जहां पर सब शांत. टीचर ने क्लास को कंट्रोल कैसे किया? बिकॉज़ सी हैड रूल्स, बिकॉज़ सी हैड दैट आइडिया. उन्होंने क्लास को बड़ा इजीली कंट्रोल किया. उन्होंने लास्ट में बच्चों से जब कहा कि तुम मुझे आंसर्स दो, जस्ट रेज योर हैंड्स. बच्चे हाथ उठाए. किसी बच्चे ने यस मैम नहीं बोला. जब मैम चाहिए एक पर्टिकुलर बच्चा आइजैक आंसर दिया, एक पर्टिकुलर बच्ची एडविन आंसर दी, तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि मेरा क्लास टीचर वंस ही कैन हैव द कंट्रोल ऑफ हिज क्लास. और टीचर ने वापस उसी तरह बच्चों को भेजा, वो भी क्रॉल करके भेजा. तो एक टीचर ने क्लासरूम में 7 इन ऑल एक्टिविटीज कराई. वही एक्टिविटीज जो पिछले क्लास में सारा न्यूसेंस किया, वही एक्टिविटीज रिपोर्ट हुई इस क्लास में. बट दीज एक्टिविटीज वर कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड एंड दीज वर कॉल्ड गाइडेड. दैट वर नॉट कंस्ट्रक्टेड, दैट वर नॉट गाइडेड इन द प्रीवियस वीडियो. तो आप एक बढ़िया चीज ये सीख रहे हैं. एक टीचर चाहे तो क्लास को अच्छा बनाए, चाहे तो क्लास को बुरा बनाए. आई एम वेरी श्योर यहाँ मौजूद हर एक टीचर चाहेगी क्लास को वेरी श्योर हर एक टीचर चाहेगी क्लास को वेरी श्योर हर एक टीचर चाहेगी क्लास को इस बार बहुत अच्छा बोल दीजिए. बहुत अच्छा. ओके आई वाज एक्सपेक्टिंग द ओके. तो हम चाहेंगे क्लास को बढ़िया से बढ़िया बनाएं और ये टीचर के हाथ में होता है. बच्चे सीट चेंज करें, बच्चे बोले, बच्चे डिस्कस करें. एवरीथिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ टीचर. नेक्स्ट स्लाइड. The last topic is patience. हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए. बीइंग एजुकेटर्स पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह आपने पेशेंस देखा इस 2 hour long वर्कशॉप में झेलना है, चलो झेल लेते हैं. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव गॉट टू हैव पेशेंस लाइक द वेट चेयर. ये आम चेयर बड़ी कम लोगों को पसंद होता है और ओएलटीसी में हमारा सबसे प्यारा साथी यही होता है. मैंने तैयार रखा है. We have to be like arm chair. हमारा मूवमेंट हल्का हल्का होते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए. एक टीचर को क्लास में आना है, बस नजर रखना है थ्रू आउट द क्लास और नजर रखते रहना है. पेशेंस बिल्कुल वेट टाइम ऐसा होना चाहिए. स्टेइंग एट द मोमेंट. आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा जब से वो जाते हैं ग्रेविटी लूज करते हैं. जैसे ही ग्रेविटी लूज करते हैं जैसे ही ग्रेविटी लूज करते हैं वो अपने आप को धीरे 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 हल्का हल्का संभालते रहते हैं. ऐसा नहीं कि ओ माय गॉड क्या हो गया, माय वंडर क्या हो गया, सो ऑन. स्टे करते हैं एट द मोमेंट. सिमिलरली एक बच्चा आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है, टीचर से अपना आपा को कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, आर यू हियर इन द क्लासरूम,
You are the most notorious student. Let me complain about you to the principal and also to your parents. अब कुछ टीचर ये भी कहते हैं फेसबुक पे तुम्हारा अकाउंट बना के डाल देंगे जिसमें उनको टैग कर देंगे. हाँ केसेस कुछ नहीं पर बच्चों को ध्यान से ऐसे लिखते रहना है. अगर आप पेशेंस दिखाते हैं तो बच्चा अपने आप संभल जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बीइंग अलोंगसाइड बट नॉट इन फ्रंट ऑफ. मैंने कहा था ये मूवमेंट क्लास टीचर्स को क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो उड़ते नहीं हॉवर करते हैं. हॉवर तो डराते हैं. क्लासरूम में आपको वैसे ही हेलीकॉप्टर ड्रोन करना है. यहाँ पर आपका पोजीशन यहाँ है, यहाँ चले हैं, वापस यहाँ गए, वापस यहाँ. बच्चों को बस एक आइडिया प्रेजेंटेड ये होना चाहिए that the teacher is moving and when he or she is moving he or she could come to me. वरना जो बैठ गए वो उठेंगे नहीं. ये भी आते हैं. तो आपको हावर करते रहना है एक ड्रोन की तरह, हेलीकॉप्टर की तरह, ताकि बच्चों को मालूम ये हो जाता है टीचर खुद come to me. The classroom be managed effectively. Next, मॉडलिंग, प्रैक्टिसिंग एंड ट्रेनिंग. एक रेस कार होना है टीचर्स को पेशेंस के मामले में. एक ही सिस्टम डेली प्रैक्टिस करते रहना है. रेस के लिए डेली खुद को तैयार करना है और हमारी कार बढ़िया लेकिन फिर उसको चेक करते रहना कुछ गड़बड़ तो नहीं है. ये इशारा सब समझ गए होंगे. लास्टली हमारा प्यारा सा कान, नॉट जस्ट हियरिंग बट लिसनिंग. किसी ने कुछ कह दिया सिर्फ सुनकर ही रह गए. अटेंटिवली सुनना है. एक बच्चा कह रहा मैम मैं गो टू टेक वाटर. ओके मूव. थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए. अच्छा यू आर थर्स्टी बेटा, मूव ऑन. बच्चा फील करेगा ये मेरे टीचर नहीं मेरे पेरेंट्स. और जहां ये बॉन्डिंग आ गया ना, बच्चे टीचर्स को पेरेंट्स समझने लगे. जीत गए हम, जीत गए हम. एक बच्चा की तबीयत खराब है, आप खुद अपने साथ लेकर प्रिंसिपल रूम तक सिक्योर तक ले जाएं. एक बॉन्डिंग बनती है. वहीं पे जो बच्चा नाटक कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, बड़ी प्यार से बैठते हैं. अच्छा बेटा नाटक वही वाला नाटक जो हमने किया था बचपन में. बस इतना मुझे बच्चा समझ जाएगा नहीं टीचर तो मेरे कुछ था. अब अगर नॉट जस्ट हियरिंग बट ट्रूली लिसनिंग. ट्रूली आपको सुनना होगा बच्चों की बात. और पेशेंस में ये 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पर अगर ध्यान देंगे तो द टीचर विल डू वंडर्स. द लास्ट टाइम प्लीज. थैंक यू. और हमेशा मेरी आदत है थैंक यू के साथ एक मैसेज देता हूं मैं, और ये बहुत बड़ा मैसेज आपको दे रहा हूं. व्हाट अ टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ लाइफ कैन नेवर बी इरेज्ड. वो पावर ऑफ टीचर्स के पास है. हम ब्लैक बोर्ड ऑफ लाइफ पे जो लिख देंगे वो कभी भी मिट नहीं सकता है. So you have got that power and I'm very sure your teachers can do wonders. और आज से सारे टीचर्स बढ़िया से बढ़िया करें, और जिनको कुछ बढ़िया करने के बाद अवार्ड मिला एक मिठाई करेंगे. थैंक यू ऑल वेरी मच. थैंक यू. You all are being given feedback from Akbar sir and Shahid sir. Kindly feel it genuinely. मेरी बात अगर पसंद आई तो वो भी लिखेंगे, नहीं पसंद आई वो भी लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पसंद नहीं आई वहां से मैं सुधारने की कोशिश करूंगा. Because I'm a good learner. और इस फीडबैक फॉर्म के बाद you will be provided certificate from your school. Kindly have those certificates. Have a marvelous day to you all. Merry Christmas and in advance Happy New Year to all of you.